کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا بیٹا واصف توصیف ہے، میں ان کی ماما بات کر رہی ہوں. میرا نام فہمیدہ بانو ہے. ہم مسلمان گھرانے سے ہیں. میرے بیٹے کو جاب کا کہہ کر ٹریپ کیا ہے بسما نام کی لڑکی نے. میرے بیٹے کو جیل میں 3 سال ہونے والے ہیں. ہم مڈل کلاس لوگ ہیں. ان کے ابو ہارٹ پیشنٹ ہیں. پلیز ان سب بچوں کی مدد کی جائے، ان سب بچوں کو باعزت بری کیا جائے. اللہ کا واسطہ ہے، ہم بہت مجبور لوگ ہیں. ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں ہماری مدد کی جائے. اللہ ہر ماں کو سکون دے. پلیز میری ریکویسٹ ہے ہمارے بچوں پہ نظر ثانی کی جائے. میرا بیٹا بلاسمی کے کیس میں اندر ہے اور میرا ایک ہی بیٹا، میں بیوہ عورت ہوں. کتنی دیر ہو گئی ہے؟ جی میرے بیٹے کو تقریباً سال ہونے والا ہے. ایک مخدومہ نام کی لڑکی تھی جس نے میرے بیٹے کو ہنی ٹریپ کر کے بلایا، نوکری کا جھانسا دیا اور یہ ایف آئی والے اٹھا کے اسے ادھر لے آیا. اور میری حکومت وقت سے التماس ہے کہ جلد از جلد کمیشن بنائے اور سب بچوں کو باعزت بڑی کرے. میرا بھائی اندر ہے، 2 سال اور 1 ماہ ہو گیا. اس پہ توہین کا مقدمہ ہے، لیکن میرے بھائی نے کوئی توہین نہیں کی. یہ جو گینگ کام کرتے ہیں، لڑکیوں کے ذریعے بچوں کو ٹریپ کرتا ہے. نوکری کا جھانسا دے کے ان کو بلایا گیا تھا اور پھر اس پہ یہ ساری دفعات اور یہ سب کچھ ڈال دیا گیا. لیکن وہ بچے معصوم ہیں. یہ جو گینگ ہے یہ خود ہی سارا کچھ کرتا ہے. اسی دوران میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو آخری وقت میں نہیں دیکھا. میری حکومت سے اور یہ جو مریم صاحبہ ہیں ان سے درخواست ہے کہ جلد سے جلد ان بچوں کو رہا کیا جائے اور کمیشن پہ کام شروع کیا جائے. حکومت پنجاب سے میری گزارش ہے اور میری اپیل بھی ہے. ہمارے بچے جو ادھر پھنسے ہوئے ہیں، یہ غلط الزام میں پھنسے ہوئے ہیں یا پھنسایا گیا ہے، تو مہربانی کر کے میری سب سے اپیل ہے کہ ہمارے بچے کو نا رہائی مل جائے. ٹھیک ہے نا. وہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، غریب ہیں. یہ 3 سال ہو گئے ہیں ہمیں یہاں پہ ذلیل ہوتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور بہت ساری مائیں ہیں، بوڑھی ہیں، وہ چلا نہیں جاتا ان سے. وہ رو رو کے بیچاری ادھر آتی ہیں، 2 3 ماہ بعد آتی ہیں اپنے بچوں کو ملنے کے لیے. ان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے کوئی. تو ہم بہت زیادہ غریب ہیں. بہت مشکل سے یہ ہم جو ہے نا پیچھے بچوں کے جاتے ہیں. تو لہٰذا مہربانی کر کے یہ ہمارے بچوں کو نا رہائی مل جائے، دے دیں. مہربانی آپ کی ہوگی. اور یہ جو آئی ڈی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ ایسے پھنسایا ہوا ہے ان بچوں کو. انہوں نے نا آئی ڈی بنائی ہوئی ہے. آئی ڈی بنا کے یہ بچوں کو وہاں سے بیچ میں سے لڑکوں کو لڑکیوں کو چھوڑا ہوا ہے. ان میں سے یہ باتیں کرتے ہیں، پھر ان کو پھنساتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور بہت ظلم بھی کرتے ہیں. اور ہم بہت غریب ہیں، بہت پریشان ہیں. مہربانی کر کے ہمیں جو ہے نا ان بچوں سے کہ رہائی مل جائے. اور ہم نے نا اسلام آباد میں بھی اپیل کی تھی، ادھر بھی کی ہے، لاہور میں بھی کی ہے، تو ہماری کوئی بات نہیں سنتا. جب بھی ہم جج کے پاس پیش ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی، وہ جو مولوی ہیں، یہ جو سب ہیں، یہ سب کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں. پھر وہ ہمیں پریشان ہو کے واپس آنا پڑتا ہے. اسلام آباد میں جو اپیل کی تھی، ہم نے درخواست دی تھی، وہاں سے ہمارے حق کے اندر وہ ہو گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ ہماری بات نہیں سنتے. لہٰذا مہربانی کر کے ہم ماؤں کی دعائیں لے لیں. اور پریشان بہت زیادہ، مہربانی کر کے ہمارے بچوں کو رہائی دی جائے. میرا بچہ مذہب کے الزام میں ہے، تو ان کے الزام میں انہوں نے لڑکا دیا. کتنا عرصہ ہو گیا بچے کو؟ 10 ماہ ہو گئے، 1 سال ہونے والا. 1 سال. کیسے آپ کے بچہ یہاں پہ آیا؟ کیسے، کیا کہتے ہیں؟ ہنی ٹریپ کہتے ہیں، لڑکی کے ذریعے اسے ہنی ٹریپنگ کی اور ہے. یہ کس نے پھنسایا ہے؟ یہ راؤ عبدالرحیم، نوید اسلم، حسن معاویہ، یہ سارا گینگ ہے. یہ سارے ملے ہوں. آپ اس سلسلے میں آپ نے کوئی اپیل کی ہے کسی جگہ؟ ہاں جی، اسلام آباد میں بھی کی ہے. ادھر کیس چل
इधर कोई सुनवाई नहीं हो रही, इधर कोई पूछने वहाँ केस का वाला। फैसला हो गया है? हाँ जी, इस्लामाबाद में हो गया। हम कह रहे हैं, हम हुकूमत पंजाब से ये अपील है कि कमीशन का जो फैसला हुआ है ना, वो कमीशन बननी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हमारे बच्चों का फैसला इसी में है कि आपको कमीशन इसमें क्या क्या मसाइल है? इसमें मसाइल ये देखे, घर का खर्चा बहुत मुश्किल है चलाना। हाँ जी, बच्चों के पीछे आना का कारोबार के बहुत मसाइल है यहाँ आने में। सर वो ना हमारे जो है ना बच्चे 3 साल से हैं इधर, ठीक है ना, तो हम बहुत परेशान हैं, ठीक है ना। हमें ये बहुत मसला बनता है आने जाने में, ठीक है। और मेहरबानी करके ये हमारे जो बच्चे हैं ना, इनको रिहा किया जाए। आपका बच्चा बहुत तो दूर इनके से- इल्जाम में? इल्जाम ये मुस्लिम केस में क्या इल्जाम में? आपके बच्चे तो इन्हें मजहब के इल्जाम में? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, और कितना अर्सा हो गया आपको? 3 साल, ये तीसरा साल हो गया है। कैसे आपका बच्चा इसमें आया है? वो इन्होंने ना कोई आईडी बनाई हुई है, ठीक है ना, उस आईडी में ये बच्चों को ना फंसा रहे हैं और मजीद फंसाते जा रहे इसके हैं। लिए आपने कोई कहीं रिट की है या कहीं दरखास्त दी है किसी जगह? हाँ जी, दरख्वास्त दी थी, इधर भी दी है, इस्लामाबाद में दी। इस्लामाबाद में तो हमारे हक में वो फैसला हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। मेरा बेटा 1 साल 2 महीने हो गए। अच्छा, आपके बच्चे के अलावा और बच्चे भी इन मुकदमात में कैसे? 450 बच्चे। अच्छा, ठीक है, 450 मेरे बच्चे बच्चे ने इन्होंने FIA वाले केसेस में। जी FIA वाले के आपको इसमें कितनी मुश्किलात और मसाइल सामने पड़े? इसमें इतनी मुश्किलात है कि हम बता नहीं सकते। हम बेवा औरत हैं, कितनी बेवा मेरे साथ हो रहा है, जड़ियाँ बेचारियाँ थोड़ा से मांग के अपने बच्चे वास्ते लेके आती हैं। हम किधर जाएं? आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत वक्त? हुकूमत को मैं यही पैगाम दूंगी कि खुदा के लिए हमारी मदद करो। मेरा बेटा है नहीं आंदा पुत्र, मैं तो उन गल नहीं मुझे नहीं गल। कितना अर्सा थी गया है? बस हाँ ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल थी 1.5 गया। साल। FIA का केस है? जी है। तुसा मुश्किलात परेशानियां हैं ने आने जाने सामान ये जमा करना? मुश्किलात है ना, असी हम 2 महीने बाद आया, छोटे छोटे बच्चे गिन के आया, मेरा आदमी है ही नहीं है, ये रहा नहीं एक मेरा बेटा है कमाने वाला, वो जो बड़ा बेटा वो अंदर होया पिया, असि हम की कर सकते हैं। मैं बहुत मुझको ना तुसी हुकूमत वक्त नाल की कहना चाहो? मैं असि तो यही आखना जेडी भी गई ना बेगुनाह चाहे बना रफा करे उन्हें मुश्किल जानो। मैं पूरी माँ हूँ, मेरे को नहीं करता छोड़ना बेटा ना मैं कर सकती हूँ। उन्हें बच्चा तक नहीं है, बीवियाँ तक नहीं है, ला परेशान मैं होनी है। मैंने सुबह बेटा तो सब वो क्यों वो गल कर रखना, एक बंदा कितना खेल सकता उठा। मेरा बेटा है अच्छा, और भी मेरे बेटे के साथ बहुत बच्चे हैं, उनको ना जबरदस्ती इधर रखा हुआ है। कोई उन्होंने जुर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये मोबाइल और पिका एक्ट में कैसे? हाँ जी, मोबाइल के चक्कर। कितना अर्सा हो गया? कितना 3 साल होने वाले हैं। 3 साल। अभी तक कुछ नहीं बना। जहाँ जाते हैं कोई पैसे ले लेता है, पता उधर जाओ उधर जाओ। हम बहुत मुश्किल में है हमारी। ये आपका बच्चा FIA वाले केसेस में? हाँ जी, हाँ ऐसा ही। उसके 60 साल। अच्छा, 60 साल का है। कौन से इल्जाम में? शाम शराब लगाया नहीं ना, तो इल्ज़ाम लगाया नहीं। तो इनका इल्जाम है? हाँ तो इनका इल्ज़ाम लगाया नहीं ना, तो कितना अर्सा हो गया? 2 साल होने वाले। 1.5-2 साल हो गए। आप बहुत दूर से आते हैं? मैं पार से आती हूँ। अच्छा, आने जाने में कितना टाइम लगता है? आज पूरी रात। तो आप कोई मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत वक्त से? जाऊँगी, क्यों नहीं जाऊँगी, इधर जाऊँगी और बताऊँगी बीमार बंदा है, दिल का मरीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसको कैंसर है, कैंसर भी है? कैंसर भी है उसको। अभी मैं उसका ऑपरेशन किया है, वो इन कह रहे घर से पकड़ा है, घर से पकड़ा भी नहीं, क्योंकि बेटियाँ वाले गैस ही उसको पकड़ा। ये कौन है? लड़कियों के जरिए टाइप किया है? पढ़ने वाला है, नाम नहीं आता मुझे इसका। लड़कियों से के जरिए? हाँ जी। अच्छा, ठीक। बेटे को पहले पकड़ने मेरे घर से हमला किया नहीं, मेरे पढ़ती किसी ने मेरे बच्चा साया हो गया, हमला किया नहीं। मेरा बेटा है जी, मेरा एक ही बेटा है, मेरा और बच्चा कोई नहीं है। एक ही मेरा बेटा है जो इन जालिमों ने पकड़ के तो अंदर। किसने फंसाया है? ये बस एक लड़की थी मखदूमा, उसने कॉल की थी कि आए आप बच्चे को नौकरी के लिए, और फिर FIA वालों ने उन्हें पकड़ के तो इधर ले आए। ये कौन लोग हैं? ये गैंग है लाजमी का, जो उन्होंने लोगों को फंसाने के लिए बच्चों को। आपने इसके लिए कोई दरखास्त, कोई अपील? हाँ कोई जी, मैंने दरखास्त दी है। हुकूमत वक्त से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल करें
और हमें जो है ना इंसाफ दिलवाएं। आपको अंदर जेल में कोई मसाइल हैं? थोड़े से, लेकिन क्या करें, अब इन्होंने हमें फंसा दिया है, तो अब ये मुश्किल का टाइम है, अल्लाह ने अब हमारा गुजारना है। 19 महीने हो गए, 2 साल समझो हो गए। अच्छा, और मैं कमाने वाला था, मेरी 3 बेटियां हैं, 16 साल हो गए मेरे मियां को मौत हुई, और मैं अकेले काम करती हूँ, इधर आती हूँ, कोई बात नहीं सुनता। आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत मरियम नवाज हमारा साथ दे, हमारे बच्चों को पे रहम करे, हमारे बच्चे आ जाए घर, हम बड़े परेशान हैं, छुड़वाए हमारे बच्चों को। आप किसी से अपील करना चाहेंगी? मरियम नवाज से अपील करना चाहूँगी कि आप मरियम नवाज हमारा साथ दें। हम बड़ी परेशान हैं माएँ, तो मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से उसके रिश्ते मरियम नवाज से हमारी गुजारिश है कि हमारे बच्चों की मदद करें, हमारे बच्चों को छुड़वाए। बड़ी मेहरबानी है, आप भी बच्चों वाली है। 1 साल 5 महीने हो गए, मगर मेरे घर में कोई नहीं है कमाने के, और मैं सिर्फ अपना बच्चा चाहिए, और हम लोग गरीब लोग हैं। मेरा बच्चा झूठ के इल्ज़ाम में यहाँ वो बन गई, तो ये मैंने मज़हब के इल्ज़ाम में मेरा बच्चा बन कितना अर्सा हो गया? 1 साल 5 महीने हो गए। अभी आप कितने अरसे बाद आए? हम 6 माह बाद आए, कभी 4 माह बाद आए, कभी 6 माह बाद आए। मेरे घर में कमाने का कोई नहीं है, मैं क्या करूँ, दूर दूर से हमारा गांव। आप हुकूमत वक्त से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? सुबह मुतालबा करें, तो हुकूमत से ये चाहिए, मगर मेरे को उर्दू नहीं आते, इंसाफ वाड़म हमारे बच्चे वाड़म, अपना मदद चाहिए। पाकिस्तान से हम मदद आप चाहिए। पाकिस्तानी हैं? अब मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, ठीक। आपको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है? यहाँ से अपने गांव से जब यहाँ पे आते कितना टाइम लगता है आने में? अपना गांव से हम तो का दिन तो असर की नमाज के बाद हम निकल जाएगी, तो यहाँ तो सुबह अज़ान के टाइम पे निकल, मतलब 12 घंटे लगते हैं, 10-12 घंटे, 14 घंटे। भाई मेरा बेटा है। कितना अर्सा हो गया? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। अच्छा, ये कैसे आपका बच्चा कैसे पकड़ा गया? ये मेरा बेटा ना, ये मेट्रो में जॉब करता था। हाँ। उन्होंने फ़ोन किया कि आपकी सैलरी आई है। अच्छा। तो बैंक में आई, तो इसने कहा कि इधर से मेरा अकाउंट बंद हो गया है, तो फिर भी चला गया है। गया है तो अंदर गया है, तो उन्होंने जो बातचीत करनी थी की, तो वो पकड़ के ले आए। अच्छा, और कौन से इल्ज़ाम में? ये आपका ही मुझे इनका नाम भी नहीं आता। तो मज़हब के इल्ज़ाम जी, ये मतलब आप हुकूमत 3 साल हो गए हैं, आपको कहाँ से आती, दूर से आती है? मैं आती बेतिया रोड से। अच्छा, तो बहुत मेरे लिए मुश्किल है, बेवा घर में अच्छा, घर में आपकी कोई नहीं, मेरा मियाँ नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं कमाने वाला। ये मेरा बेटा इसके साथ ही थी, इसकी ये बच्चियाँ 2 छोटियाँ बीवी है इसकी। तो बीमार हूँ मैं ऐसे ही, बस 3 साल हो गए रो के आ जाके, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं मदद करता। आप इनकी आंखों में आंसू देख सकते हैं कि कितने ये इनका कर्ब में और तकलीफ में मुब्तला है, और आप हुकूमत वक्त से कोई मुतालबा करना चाहिए? इनसे हमारी यही दरख्वास्त है, हमारी हेल्प करें, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, तो इनकी मदद चाहिए। हम पाकिस्तान के रहने वाले पाकिस्तानी हैं। आपका बच्चा भी इसी इल्ज़ाम में है, तौहीन वाले इल्ज़ाम में? इसी इल्ज़ाम में। अच्छा, तो आपका बच्चा FIA वाली केसेस? तो आप कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत यही दरख्वास्त है कि हमारे बच्चे को बाइक बंदी करे, वो हमारे बच्चे बेगुनाह है। आप इसके लिए क्या कहती है, कैसे बेगुनाह है? हमारे बच्चे बेगुनाह है। आपने कहीं रिट किया है? क्या हुआ था उसका भी कुछ पैसा नहीं हुआ, कमीशन बना, पता नहीं क्या बनेगा, क्या होगा। कमीशन ने क्या कहा गया था? इसकी इंक्वायरी करें, मजीद इंक्वायरी। आप हुकूमत वक्त से क्या कहना चाहेंगी? मैं कह जाती हूँ कि हमारे बच्चे बेगुनाह है, हमारे साथ है, वो इनको निकाले। अच्छा, कितना अर्सा हो गया? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? कौन से इल्ज़ाम में? ये अच्छा, और ये कैसे आपका वो अंदर आए?
ये इनको ट्रैप किया गया है, किसी लड़की ने इनको कॉल की है, कलमा चौक बुलाया, फिर वहाँ से इसको अगवा करके किसी अनजान जगह पे ले गए हैं, वहाँ पे इनको रखा है और पैसे मांगे हैं, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए तो इन्होंने फिर उसके ऊपर ये मुलाजिम केस कर दिया। अच्छा, तो ये कौन लोग हैं? ये असल माफिया के लोग हैं, राउंडरी में ये FIR के साथ ये कोई ब्लास्फेमी भी है। अच्छा, आप किसी से मुतालबा करना चाहेंगी? ये हम हुकूमत पाकिस्तान से, ये सदर से सबसे अपील है हमारी कि हमारी मदद की जाए। मेरा बेटा है छोटा, 1 साल 12 साल का मेरा बेटा है और एक ही बेटा है और बेटियाँ हैं, हमारा तो कमाने वाला भी वही है, तो आपकी मेहरबानी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी मदद करें। रहमत सैयद लौलाद पे कामिल ईमान, रहमत सैयद लौलाद पे कामिल ईमान, उम्मत सैयद लौलाद से खौफ आता है, खौफ आता है। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों ने। हमने ज़ाहिर है इसमें कोई एडिटिंग नहीं थी, ये एक रॉ हैंड बनी हुई चीज़ थी और एक तरह से ये शमूलियत थी उन माओं की जो यहाँ नहीं पहुँच सकती। हमने कोशिश की कि वो यहाँ पहुँचे, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियाँ थी और वो भी अपने बच्चों को मिलने के लिए भी वो महीने 2 महीने के बाद आती हैं, तो लाहौर से इस्लामाबाद आना मुश्किल था उनके लिए, फिनंशियली भी और वैसे भी वक्त के उनके पास नहीं था। हम इनकी शुक्रगुजार हैं जो लाहौर से चल के हमारे पास यहाँ पहुँची हैं। इनमें माएँ हैं, इनमें वालिदैन हैं और आज एक तरह से दूसरी एपिसोड है। इससे पहले हमने किया था यहाँ पर ही प्रोग्राम, माएँ आई थी जिनका ताल्लुक़, जिनके बच्चे अडियाला जेल में थे। ये वो वालिदैन हैं जिनके बच्चे कैंप जेल लाहौर में हैं। ये 2 शहरों में 700-750 बच्चे हैं। उनके वालिदैन ज़ाहिर है वो यहाँ पर तो हर जुमेरात को अडियाला जेल में मुलाकात होती है, लाहौर कैंप जेल में हर मंगल को वहाँ वालिदैन जाते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं। वो जैसी भी मुलाकात होती है 15-20 मिनट की हाल हवाल पूछते हैं। तो अगर हमने ये सारी बातें सुनी हैं, हम इन दोस्तों से भी बात करेंगे, माओं से बात करेंगे। मैं ये सब कुछ कहने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने लाहौर में और इस्लामाबाद रावलपिंडी में FIA के जिन ओहदेदारों ने इनके बच्चों की तफ्तीश की, बुनियादी चालान बनाए और उन्हें जुडिशल पर जेल भेजा, वो सारे इस वक्त गिरफ्तार हैं, मुअत्तल हैं, गिरफ्तार हैं और उन्होंने करोड़ों रुपया लोगों से लूटा है। 2 नाम मैं आपके सामने लेना चाहता हूं। मुझे चाहिए था कि मैं उनकी क्लिप्स भी दिखाता। सरफराज शाह, ये एक ओहदेदार है FIA का, लाहौर में इसकी तैनाती है और इस आदमी ने एक यूट्यूबर से कोई 1 अरब रुपया रिश्वत ली है। इसको मुअत्तल किया गया है, इसको गिरफ्तार किया गया है। और मैंने इसका एक क्लिप देखा जिसमें ये कह रहा था, जो मुल्ज़म बच्चे हैं उनके वालिदैन को ये तंबीह कर रहा था कि खुदा के लिए आप इनके केस ना लड़ें, और फिर वकला को ये धमकी दे रहा था और साथ तजवीज़ दे रहा था कि आप इनके केसेस ना लड़ें, इन्होंने तो तौहीन की है। ये उन बच्चों के केसों की पैरवी करने वाले वकला तक को रोक रहा था। यही सरफराज शाह जो अरबों रुपया रिश्वत लेने के साथ साथ न सिर्फ मुअत्तल है, गिरफ्तार है। दूसरा कोई मोहसन आवान नाम का आदमी है जो यहाँ पर इस्लामाबाद में था। 3 दिन पहले इस पे मुकदमा हुआ है, 35 करोड़ रुपया रिश्वत ली है इसने, 35 करोड़ रुपया रिश्वत ली है और इस पे मुकदमा हुआ है। अंदाजा लगाएं कि ये वो लोग हैं
जो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, जो FIA में थे, बाद में ये साइबर क्राइम एजेंसी में गए, इन लोगों ने आम लोगों को, आम शहरियों को कितना लूटा है और इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। यही लोग इन वालिदैन के बच्चों के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और लोगों को डरा धमका रहे थे कि खबरदार जो है वो पैरवी ना करना, और ये बड़ा पुण्य का, नेकी का काम कर रहे थे। उस नेकी के काम में इन्होंने इन लोगों से पैसे मांगे। यहाँ माएँ मौजूद है, वो बताएंगी करोड़ों रुपया इनसे रिश्वत मांगी, और जिन लोगों से रिश्वत ली उन लोगों के वो सामने आए और ये लोग अब अंदर हैं। तो क्या इस सूरत में किसी कमीशन की जरूरत नहीं है? मैं समझता हूं अगर कमीशन बने तो पता चलेगा। और हमारे ये जो जज साहबान आजकल अदली बदली हो रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे जा रहे हैं और बड़ी तरमीम हो रही हैं, एक तरमीम की शायद इसलिए भी ज़रूरत है कि इसी मुल्क के सैकड़ों बच्चे और उनके वालिदैन जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, और जिन लोगों ने उनसे तफ्तीश की, जिन लोगों ने उन पर मुकदमात बनाए, जो लोग उनके मुद्दई हैं, वो लोग करप्ट साबित हो चुके हैं, उन पे मुकदमे हो चुके हैं और उनके खिलाफ दरख्वास्त कहीं बाहर से नहीं गई, महकमे के अंदर ही तफ्तीश हुई। जो मालूमात पहुंची कि उसी की बुनियाद पर महकमे की हाई कमांड ने ना सिर्फ उनको गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमे हुए। ये क्रेडिबिलिटी है FIA के उन लोगों की जिन लोगों ने इन लोगों के बच्चों के केसेस को इन्वेस्टिगेट किया। तो आज हम बात करेंगे उन बच्चों के वालिदैन से जो लाहौर में कैंप जेल में हैं। बहुत सी तकलीफ है लोगों को बाहर, बहुत से यूट्यूबर्स और पता नहीं किस किस्म की चीज़ें जो हैं वो इस बात पे नाराज़ हैं कि हम मजलूम की आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। वो 1000 मरतबा नाराज़ होते रहें, वो अपनी दानिश और फलसफे को तड़का लगाते रहें, लेकिन ये हकायक है। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ बातें हैं कि वो जी तौहीन हो गई, पाकिस्तान में ये तौहीन होती है। कहीं कोई तौहीन नहीं करता, किसी की जुर्रत नहीं कि यहाँ 98% मुसलमानों के मुल्क में कोई तौहीन करे। मैं 25 साल से ब्lasphemy के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, एक भी केस ऐसा नहीं है। और अगर आप तौहीन पे जाएंगे, जो आप स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, उन स्टैंडर्ड्स के तहत हर दूसरा मुल्ला तौहीन करता है। वो तौहीने मजहब भी करता है, वो फिरका वारियत फैलाता है, वो तौहीने इंसानियत भी करता है। तो फिर तो बहुत पकड़े जाएंगे। इनका गुनाह ये है कि ये गरीब हैं, इनके बच्चे ट्रैप हुए और उनको जुडिशियल सुने बगैर, तो मैं बहुत आसानी के साथ ये कह सकता हूँ कि गैर साबित शुदा इल्ज़ामात के तहत इन लोगों के बच्चे जेलों में हैं, और उन जेलों में हैं जहाँ सिक्योरिटी के इंतजामात ना होने के बराबर हैं। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में हो चुके हैं कि बहुत से ऐसे तौहीन के मुल्ज़िमों को जेल में ही लोगों ने हमला करके नुकसान पहुंचाया। इनके बच्चे भी वल्नरेबल हैं। हुकूमत को जागना चाहिए और देखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हम ये कहानियां शुरू इनकी सुनना करते हैं। सबसे पहली कहानी ये हाफिज़ कुरान है। ताहिर साहब हाफिज़ कुरान है और आलम दीन है, तबलीगी जमात से भी मुंसलिक हैं, तबलीग करते हैं दीन की, दीन रहमत की तबलीग करते हैं। इनका बेटा भी हाफिज़ कुरान है, और वो बेटा जो है वो मार्च 2023 से ट्रैप होकर कैंप जेल लाहौर में है। तो क्या कोई जवाब है किसी के पास कि एक हाफिज़ कुरान जिसका ओढ़ना बछोना दीन है, जो खुद तबलीग करता है, और उसका बेटा भी हाफिज़ कुरान है और जो खुद आलम दीन है, उसको भी इस गैंग ने नहीं छोड़ा। तो हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आप आए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके बेटे को, उमैर को, कब गिरफ्तार किया गया, उस पर क्या इल्ज़ाम है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मार्च 2023 को मेरे बेटे को मस्जिद से गिरफ़्तार किया गया। 10 दिन पहले वो उम्रा से वापस आया और मस्जिद से उसको गिरफ़्तार किया गया असर की नमाज के वक्त। मैं ख़ुद मस्जिद में मौजूद था, मेरे सामने इसको गिरफ़्तार करके लाए, और एक हसन मुआविया नाम का बंदा है लाहौर का, वो साथ था, वो गिरफ़्तार करने वाले हैं। एक आद जो ताहिर शफी का भाई है, और वो लाहौर के केसेस में से अक्सर केसेस में वो ख़ुद साथ होता है।
طاہر اشرفی نے ابھی آزاد سید کو ایک پوڈکاسٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میرا یا میرے خاندان یا میرے رشتہ دار کا کسی کا نام آئے تو مجھے جیو کی بلڈنگ پر پھانسی دے دینا. اس نے یہ اعلان کیا تھا. اور یہ آج سن لیں حافظ صاحب ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ان کے ساتھ 2 اور بھی ایسے افراد تھے جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا. ظاہراً نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی کوئی دیندار ہیں, لیکن اندر سے میرے خیال کے اندر ان سے بڑا بے دین انسان کوئی نہیں ہوگا. ایک آدھ آدمی بیچ میں FIA کا تھا, اور رستے کے اندر بھی میرے بیٹے کو مارنے پیٹنے والا یہ حسن معاویہ تھا. اور وہاں جا کے جو FIA کا جو ان کا تھانہ ہے تو وہاں بھی میرے بیٹے نے بتایا, اور اس کے علاوہ بھی کئی لڑکوں نے بتایا کہ رات کے تقریباً 12-1 بجے حسن معاویہ آ کے بچوں پہ تشدد کرتا ہے. وہ ایک غیر آدمی کو جو سرکاری آدمی نہیں ہے تو وہ تھانے کے اندر آ کے وہ تشدد کر رہا ہے, اور تفتیش بھی یہ حسن معاویہ ہی کرتا تھا کہ مان جو تم نے یہ کام کیا ہے, حالانکہ ہمارے بچوں نے یہ کام نہیں کیا. ہم تو اب جو چند تصاویر ہیں جو دکھائے جاتے ہیں ہر ایک کو وہی دکھائی جاتی ہیں, اور ایسی تصاویر تو ایک عام آدمی جو جاہل آدمی ہے جو دین سے عاری ہے وہ آدمی بھی ایسی تصاویر دیکھنا تو شیئر کرنا دور دیکھ بھی نہیں سکتا. ایسی تصاویر کو آدمی شیئر کرے. میرے خود ڈپٹی ڈائریکٹر جو وہاں پہ FIA کے تھا ان سے میری بات ہوئی جب میرے بچے کو گرفتار کی. دوسرے دن میں گیا وہاں پہ کسی واسطے سے اس کے پاس, تو اس نے خود مجھے بتایا, لا کے موبائل لیا میرے بیٹے کا, ان کے پاس ہی تھا, اس نے لیا اور لے کے دیکھے. وہ کہتا ہے کہ آپ کا تعلق تو اہل سنت والجماعت سے ہے. میں کہا الحمدللہ. ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت یہ تو دفاع صحابہ کرنے والے, دفاع اہل بیت کرنے والے ہیں, یہ تو توہین نہیں کرتے. میں نے کہا بالکل الحمدللہ, ہم تو توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتے. صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہ اجمعین تو دور کی بات ہے, ہم تو کسی ادنا مسلمان کی توہین کرنا, ادنا اللہ کے ولی کی توہین کرنا, اس کو بھی ہم کفر سمجھتے ہیں. کیا جائے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کی توہین کریں. تو پھر اس نے وہ میرے بیٹے کی ID کھولی, فیس بک وغیرہ کھولی, دیکھتا رہا تو کہتا ہے آپ کا تعلق تو اہل سنت والجماعت سے ہے, بلکہ اہل سنت والجماعت کی مشدد تنظیم سے ہے جو دفاع صحابہ کرتے ہیں. تو یہ اس سے توہین کیسے ہوئی, کس نے کی؟ میں نے کہا آپ دیکھ لیں, ایک آدمی توہین کرتا ہے اس کا سیاق و سباق دیکھیں, پیچھے دیکھیں, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, اس نے کیا کیا ہے یا نہیں کیا. تو کہتا ہے, پھر خود ہی کہتا ہے اس کو FIA کے جو سب انسپیکٹر تھا کہ یار اس میں تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو وہ اس نے کہا سر اس میں ہے. تو اس نے اس کو اشارہ کیا, مجھے کہتا آپ باہر چلے جائیں. پھر میں بلایا تو کہتا ہے جی ہم اس کا ریمانڈ لے رہے ہیں, ہم اس کو تفتیش کریں گے. تو یہ ساری کی ساری یہ ان کی اپنی ملی بھگت سے ہو رہا ہے, اور یہ سب یہ چند یعنی کہ سرکاری آدمی ہیں, سرکاری افراد, اور یہ کچھ سیاسی افراد ہیں, یعنی کہ ان کے ساتھ مل کے سب کچھ یہ کر رہے ہیں. تو آپ کا بچہ اس وقت جو ہے وہ ریمانڈ پر ہے, جیل میں ہے, جوڈیشل پر ہے. ہاں جی, 3.25 سال ہو گئے تقریباً جیل میں ہے. تو اس دوران آپ نے خود بھی, آپ عالم دین ہیں, آپ نے وہاں مقامی علماء سے کوئی رابطہ نہیں کیا, یا خود کسی ایسے شخص تک نہیں پہنچے جو آپ کی مدد کر سکے؟ جی ہم نے کئی سیاسی افراد سے بھی رابطہ کیا, لیکن سیاسی افراد بھی وہ جی توہین ہوئی ہے, تحقیق نہیں کر رہے. لیکن ہم نے تو تقریباً یعنی کہ 101 افراد نے مل کر مشترکہ طور پہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں بھی پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ ایک کمیشن بنے, دیکھے کہ مجرم کون ہے, جو مجرم ہے اس کو سزا دیں. اگر ہمارا بچہ مجرم ہے اس کو سزا دے دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو مجرم نہیں ہیں ان کو بلا جواز ان کو گرفتار کرنا, جیلوں میں ڈالنا, اور حتیٰ کہ ان کے وکلاء کو جو ہم نے کئی ایسے وکیل کیے, وکیلوں سے بات کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا کیس لڑیں گے. لیکن 2 دن کے بعد انہوں نے کہا جی معذرت ہم نہیں کرتے. انہوں نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے, کسی واسطے پوچھا, جی ہمیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. یعنی ایسے لوگ یہ وکلاء کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ججوں کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ یہ ان کو کیس لڑیں گے, آپ ان کو کیس فیصلہ کریں گے, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ان کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں یہ لوگ. آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی اپنے بیٹے سے؟ ہر 2 ہفتے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. جب ملنے گئے ہیں تو کیا آپ اس سے بات کرتے ہیں, یا وہ آپ کے ساتھ کیا شیئر کرتا ہے؟ بات حال حوالی پوچھتی ہیں, 15-20 منٹ میں آدمی کیا بات کر سکتا ہے, یا کیا بس یہی کہ باہر یہ ہو رہا ہے, فلاں کی بیل ہوگی, فلاں کی اسی کیس کے اندر اب تقریباً میرے حال میں کوئی 80 کے قریب ان کے بچوں کی بیلیں ہو چکی ہیں. یہی کیس ہیں اور یہی مدعی ہیں, مخصوص افراد ہیں جو مدعی ہیں. ایک مدعی نے 5-5, 6-6 FIR درج کروائی ہوئی ہیں, اور ایک FIR کے اندر 15-15, 20-20, 10-10, 12-12 افراد ہیں ان میں. تو حافظ صاحب آپ سے کبھی کسی نے کوئی پیسے مانگے, کوئی ڈیمانڈ کی؟ نہیں, مجھ سے تو کسی نے نہیں مانگے. آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی ہے. کیوں؟ ہم اگلے مرحلے میں آپ سے بات کرتے ہیں, آپ مائک ان کو دے دیجیے. یہ جاوید صاحب ہیں,
जावेद साहब की अहलिया भी साथ हैं। इनका बेटा गुयूर जिसकी उम्र 18 साल है, वो 2024 में उसको ट्रैप किया गया और यहाँ भी वो ईमान नामी लड़की है जिसने उसको ट्रैप किया। जावेद साहब मुझे थोड़ा बताएंगे मुख्तसर कि किस तरह आपके बच्चे को ट्रैप किया गया और आपका बच्चा क्या करता था, पढ़ता था क्या? जी मेरा बेटा जो है वो पढ़ता था, वो टेक्निकल कॉलेज में डिप्लोमा कर रहा था। तो जब वो कॉलेज से वापस आया तो क्रिकेट खेलने के लिए गया, तो बाद में जो है वो लड़की के साथ वो जो है राब्ते में था। अब उसके बाद जो है वो इसको बुलवाया वहाँ पे और आगे से जो है इन्होंने पकड़ लिया। और इसमें लिखते यही हैं कि हमारे FIA वाले थे, उन्होंने पकड़ा है, जो लिखते हैं केसेस में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे पास वीडियोस मौजूद है। अभी आपने जिस शख्सियत का नाम लिया ना, वो जिनके भाई का नाम लिया, उनकी हमारे पास 7-8 वीडियोस हैं जिसमें वो बच्चों को पकड़ रहे हैं। ठीक है, वो खुद जा रहा है पकड़ने के लिए, वो खुद आ रहा है पकड़ने के लिए। साथ कभी FIA वाले हैं और कभी नहीं है, कभी हैं या कभी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि चूँकि हमारे ताल्लुक़ साहब सब फैमिलीज़ हैं, ये लाहौर से हैं। ठीक है, इन सब के बच्चे लाहौर से हैं, मतलब कैम जेल में हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से हैं बच्चे वहाँ पे हैं। ये लोग कहते हैं कि ज़्यादातर इनका जो होता है मजहबी जमातों में कहीं जाते हैं बात करते हैं, ये कहते हैं जी एक भी केस झूठा नहीं है, एक भी केस झूठा नहीं है। अगर एक भी केस झूठा नहीं है तो अगर आप ओवरऑल देखें 47 ज़मानतें जो हो चुकी हैं वो सिंध से हो चुकी हैं। इसके बाद 26 ज़मानतें जो हैं वो इस्लामाबाद से हो चुकी हैं और 12 ज़मानतें जो हैं वो हो चुकी हैं आपकी लाहौर से। ठीक है, इट मेक्स अ टोटल ऑफ 85। 3 बच्चे बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं, मतलब 88 बन गए। अब 450-500 में से अगर एक भी केस झूठा नहीं है तो फिर इतने सारे बच्चों की ज़मानतें कैसी हो गई? दूसरी बात जो करते हैं वो हर जगह यही कहते हैं कि जब आप कोई भी बंदा पकड़ा जाता है, बच्चा पकड़ा जाए, उसकी जब घर वाले जाते हैं कहते हैं FIR दो, FIR नहीं देते। नहीं, वो हम अपनी लीगल टीम से मालूम करेंगे। कौन सी लीगल टीम? वे इज़ लीगल टीम। आप क्या किया, आपके बच्चे ने क्या, मेरे बच्चे ने क्या किया? एक वो प्रिंट आउट दिखा देंगे, तस्वीर दिखा देंगे। ठीक है, और ये तस्वीरें शेयर की हैं, कोई फ्रांसिक नहीं है, कोई वो नहीं है, ना कोई टेक्निकल रिपोर्ट है, बस वो ये आपके बच्चे ने किया है। और आपने किसी के सामने नाम नहीं लेना, ख़बरदार आपने नाम लिया, बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। आपके घर को जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने पीछे हट जाए, बस आप खामोश हो जाएं, आप इसको भूल जाएं। ठीक है, और ये हर किसी पे। अब इसमें ये एक लफ्ज़ जो है वो कहते हैं कि ये ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग है। जो हम बात करें, जो हम लोग बात कर रहे हैं, ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग। जो अपनी ये माएँ देखी हैं आप सब ऑडियंस ने, ठीक है, आप सब लोगों ने, आपने भी देखा, ये जो माएँ थी या ये जो माएँ बैठी हैं या हम लोग जो हैं, हम क्या ब्लास्फेमी को प्रोटेक्शन कर रहे हैं? कहने वाला कौन है? कहने वाले कौन है? ये लोग जो खुद ये इन बच्चों को इल्ज़ाम में फंसाते हैं। अब देखें ऑल ओवर द पाकिस्तान, ठीक है, इतनी सारी आबादी है, उसमें टोटल 30 से 35 लोग हैं, वो उन्हीं को सब कुछ नज़र आ रहा है। वही मुद्दई चले आ रहे हैं 2021 से 2025 हो गया, वही मुद्दई चले आ रहे हैं, मुड़ जुड़ के वही आ रहे हैं। 6 महीने बाद एक मुद्दई FIR करा देता है, कभी दूसरी करा देता है। इस गैंग ने आज तक कभी भी इस ब्लास्फेमी को रोकने के लिए हुकूमत वक्त के ऊपर कोई रेट नहीं की कि सारा मटीरियल ही रुक जाता है। एक आखिरी बात मैं करूँगा, अभी आपने कहा कि वो लोग भी गिरफ़्तार हैं और FIA वाले और ये पकड़े गए। मैं आपको बता दूँ, जहाँ हमारे बच्चे कैद हैं, जहाँ पे बचाए गए हमारे बच्चे डेथ सेल में, ठीक है, सिक्योरिटी वार्ड में, आज वो FIA वाले भी उधर ही कैद हैं। ये 1.5 साल पहले हमने बता दिया था कि ये गैंग है, ये रिपोर्ट्स हैं, ये लोग हैं। आज वो इस्लामाबाद में सब कुछ साबित हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में वही चीज़ें सामने आई, उसमें कोई भी झूठ नहीं था। तो इनकी तो बेइंतहा वीडियोज़ हैं जिसमें बच्चों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। आप गुजूर की वालदा हैं जी। इन्होंने केस के जो टेक्निकल पहलूज हैं या जो कुछ हुआ है उस पर बात की है। आप मुझे बताएं कि जब से आपका बच्चा जो है ये गिरफ्तार है 8 फरवरी 2024 से, कैसी उसके बाद आप क्या महसूस करती हैं? आप उससे मिलती हैं? क्या तब्दीली आई है आपकी ज़िंदगी में आपके बच्चे के जेल जाने के बाद? बहुत तब्दीली आई है। मैं आपको क्या कहूँ, मेरा शोहर मजदूर है, लेकिन 1 करोड़ की हमसे डिमांड की गई है। अब हम गरीब लोग 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाए? किसने डिमांड की है? जो गैंग वगैरह ने की है। बस इन्होंने कहा है कि 1 करोड़ रुपया दे। अब 1 करोड़ हमारे पास नहीं है, तो बोला कि 1 करोड़ नहीं देंगे, हम तुम्हारे घर को आग लगा देंगे, तुम्हारी माँ को उठा लेंगे, उसके साथ बदसलूकी करेंगे। कोई इस्लाम में है ये जायज़ है?
अब आपने अपने बच्चे से कब मुलाकात हुई है? ये मंगल वाले दिन मुलाकात के 2 सेकंड मुलाकात सही होती है। बस हाल वाले पूछा क्या हो रहा है मामा, कुछ हुआ है हमारा, बस यही बताना होता है कि वहाँ पे कोई ज़मानत हो गई है, चलें भी, आप फिक्र ना करें। लेकिन इतना बुरा हालात उसका किया है कि उसको नंगा करके कहते हैं कि मेरे साथ इतना तशद्दुद किया है, इतना मारा है, वीडियो बनाई है कि तुम इन पे साइन करो, कागज़ पे साइन करो और तुम मान लो कि मैंने ये काम किया है। घर का क्या किस तरह चलता है आपका? जॉब के हम कोई जॉब करते हैं? नहीं कारोबार है? कोई भी नहीं करते, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। और फिर ऊपर से ये केस की पेशियां और वकीलों की फीसें, ये बहुत मुश्किल है। मैं आपको क्या बताऊं, वकील अभी तक कोई भी नहीं किया। आपने वकील नहीं किया। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि वकील करें। चले उसके बाद हम बात करेंगे आयशा बीबी। आयशा बीबी का ताल्लुक भी लाहौर से है। इनके बेटे सलीम की उम्र 22 साल है और उसको 15 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया, यानी आज 15 नवंबर है, आज पूरा साल हो गया। जी 1 साल हो आपका बेटा। तो आपके बेटे पे क्या इल्ज़ाम लगा? मेरे बेटे पे यही इल्ज़ाम लगा है, जिस वक्त वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, बुलवाया था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके, वो नवीद असलम नामी इंस्पेक्टर था, उसने कहा कि मेरे आपका बच्चा हमारे पास है। मैंने पूछा किस बात पे आपके पास है, उसने क्या किया है? तो कहता है उसने तो इन्हें रसालत किया। मैंने कहा वो होता क्या है? यानी कि हमें इतना भी पता नहीं था कि ये भी होता है। तो फिर मैंने पूछा, वो कहता है आपका बच्चा जो है ना, उसकी FIR पहले हो चुकी है, फिर अब हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया, हमारे पास है। उसके पास एक वीडियो की हमें रिपोर्ट थी, उसके पास 5 वीडियो मिली हैं, आप आएँ हम आपको दिखाते हैं। तो जिस दिन हम जाते हैं, मैंने बल्कि उनसे पूछा, उसको मैंने कहा कि हमारा मोबाइल, तो वो आगे से नहीं बोला। हमें बस 2 से 3 मिनट बच्चे से मिलने दिया, उससे ज़्यादा मिलने भी नहीं दिया। तो जब हमने देखा बच्चे का हाल वो हुआ था कि मैं बता नहीं सकती। मेरे बच्चे पे इतनी तशद्दुद की हुई थी ना, जिसका कोई हाल नहीं था। मार के काला वो बच्चा हुआ बड़ा था। तो आगे वो मेरा कज़न गया साथ, उसने बोला कि बच्चे को मारा क्यों है? तो वो कहता है, वो गेट पे जो सिक्योरिटी था उसको बोलता है कि इसको आप अंदर नहीं आने देना। तो आगे फिर बहुत कुछ हुआ है। ये जब वो उसको फ़ोन किया था मखदूमा नामी लड़की ने, तो कहती है नौकरी, जारी बात है मज़दूर बच्चा था, नौकरी का वो किया, नौकरी के लिए वो चला गया। जब नौकरी के लिए बुलाया तो वहाँ पे जब बच्चा जाता है तो कहती है मैं अपने ड्राइवर को भेजती हूँ। जब ड्राइवर की बात आती है तो इधर से थोड़ी देर के बाद देखता है कि डाले पे 8-10 लोग आ जाते हैं। तो उनमें ये सब लोग होते हैं, हसन मुआविया होता है, ये FIA के कुछ होते हैं, नहीं होते, बाकी मुझे नहीं ये पता। तो बाकी हसन मुआविया होता है, और भी होते हैं। 12 बंदों ने 2-3 दिन बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया बच्चे पे ना। तो फिर जब हम गए थे तो मैंने कहा मोबाइल तो चलो उसका बच्चे का देखते हैं। मोबाइल वाली तो बात उन्होंने कोई की ही नहीं है ना, मोबाइल सबसे पहले ले लिया था। तो उसके बाद फिर जब मेरा ख्याल इस बात को हफ्ता हो गया था, जब हम सेशन में जाते हैं तो उस वक़्त हम बच्चे से मुलाकात भी करते हैं और रिमांड पे लेके आए थे बच्चे को। तो साथ गाड़ी के ना मैं खड़ी थी बच्चे के पास, तो मुझे कहता है आप ना 30 लाख रुपया दे दे तो हम आपके बच्चे को छोड़ देते हैं। किसने कहा आपको? ये वो FIA का वो एक ऑफिसर था। आपके सामने आया तो आप उसको पहचान सकती हैं? जी बिल्कुल पहचान सकती हूँ। क्या कहता है? वो कहता है 30 लाख रुपया दें तो हम आपके बच्चे को छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा मैं कहाँ से 30 लाख लूँ, मेरे पास तो 30,000 भी नहीं है। तो कहता है अच्छा फिर देखती चलो हम आपके साथ करते क्या हैं। तो मैंने कहा चलो देख लेंगे, फिर जो हुआ सो हुआ, जो होना था वो तो हो गया है, अब और क्या हमसे आपने करना है। तो इतनी कह के फिर वो बाइक पे था, पीछे गाड़ी के, ठीक है, और बाकी बच्चे जो है ना वो वैन के अंदर थे। तो फिर वो चले गए। तो उसके बाद फिर हम 1 साल हो गया, आ रहे हैं जा रहे हैं। यकीनन हम तो आप इस वक्त भीख मांगने पे भी मजबूर हैं, वो हाल हो गया है। तो अब हुकूमत से ही हमारी इल्तिजा है कि हमारे बच्चों को बाइज्जत बरी किया जाए। तो आपके मियाँ क्या करते हैं? मेरे मियाँ है ही नहीं है, अब बेवा है जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 3 बेटे हैं 2 बेटियाँ। तो ये जो बेटा आपका सलीम है, ये सबसे बड़ा है या छोटा है? ये दरमियाना है।
दरमियान जी। तो अब घर का गुजारा कैसे चल रहा है? बाकी बस अल्लाह ही चला रहा है, अब क्या कह सकते हैं। छोटे हैं बच्चा, ये मजदूरी करता था, ये भी यकीनन ये मिस्त्री के साथ मजदूरी करता था, तो मजदूरी से थका हुआ ये मखदूमा के झांसे में आ गया। अल्लाह इन्हें बेड़ा गर्क करे इनका, ये अल्लाह करे, ये इनको अब क्या कहूँ। आयशा बीबी, हमें अफसोस है, और जैसे आपने बताया कि आपके बेटे को ट्रैप करने वाली का नाम मखदूमा है जी, तो ये वो मखदूमा है जिसके मुख्तलिफ नाम है, कहीं पर ये किरण है, कहीं पर ये ईमान है, ज़्यादातर केसेस में वो है ही ईमान है, बाकी नाम ईमान अलग लड़की है और सैयदा मखदूमा अलग लड़की है। तो ये मखदूमा कहाँ की रहने वाली है? लाहौर की। मतलब इसमें जो मुदई है ना, वो जो सिम यूज़ कर रही है उन मुदईयों के नाम पे। कौन मुदई है? हसन माविया? नहीं, एक और है, नुमान यूसुफ। नुमान यूसुफ। तो ये नुमान यूसुफ की कोई रिश्तेदार है? सर इनकी गैंग की मेंबर है, मतलब उसी को शो होता है। मतलब ये जितने भी हैं ना, मैं आपको बताऊँ सिंपल, जो लाहौर के मुदई हैं, जो उन्होंने अपने FIR पे एड्रेस लिखाए हैं, इनके असल एड्रेसेस वो नहीं है, असल एड्रेस कुछ और है, FIR पे कुछ और लिखाए हैं। तो ये आप अदालत में क्यों नहीं बात करते कि इनके अदालत में नहीं है, इनकी शिनाख्त नहीं है? अदालत में तो कोई बात सुनी नहीं जाती, सेशन कोर्ट में तो नामुमकिन है। इनका इतना होल्ड है, ये तो वहाँ पे आके इतना शोर मचाते हैं, इतनी धमकियाँ देते हैं, और वो मेरे ख्याल में तो हमारे वकलाओं को धमकियाँ देते हैं, जान से मार देंगे, खंजर मार दूंगा, छुरे मार दूंगा, ठीक है। और जो फैमिलीज जाती हैं, उन फैमिलीज को बहुत ज़्यादा डराते धमकाते हैं, वहाँ ज़्यादा खौफ की फिजा ज़्यादा वहाँ पे। अब हम बात करना चाहेंगे सादिया बीबी से। सादिया बीबी का ताल्लुक भी लाहौर से है, और इनके बेटे ताहिर की उम्र 27 साल है। 2022 में गिरफ्तार हुआ और इस वक्त जेल में है। सादिया बीबी, आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे पर तौहीन का मुकदमा हो गया है, और उसको किस तरह गिरफ्तार किया गया? सर, ये मखदूमा नाम की लड़की है, इसके नाम फ़ोन किया है, तो 2-3 दिन फ़ोन करता रहा है और कहता रहा मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ठीक है। तो फिर इसके बाद इसने ना कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो आप ना जो ये मरसदू पे आओ। ये ठोकर पे काम करता था, काम से अभी जाने वाला ही था। क्या तो काम करता था ये फैक्ट्री में काम करता था, सिलाई का। तो उधर से इसको बुलाया, इसका मैं मिलना चाहता हूँ, आप मुझसे मिले तो फिर बात करेंगे, राइल में आपसे मिलना चाहता हूँ। तो जब ये चुंगी पे आया ना, तो उसके बाद इसको उधर वो डाले में खड़े हुए थे, हसन माविया था और ये नवीद जो था, अशरफ था, इरफान है, ये इनके इकट्ठे 4-5 लोग ये थे, मौलवी, और ये बगाया ये वाले थे, पुलिस वाले थे, तकरीबन 15-16 बंदे थे, ठीक है। इन्होंने पकड़ा है। जब कहता मैं वहाँ पे जाके खड़ा हुआ ना, तो जल्दी से साइड पे डाला खड़ा हुआ था। जब मैं आके खड़ा हुआ तो इसने जल्दी से हमें पकड़ लिया। तो मैंने कहा मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? कहता आप चलो बैठो बताते हैं। तो हसन माफी ने उसके 2-3 थप्पड़ मुँह पे मारे ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, थप्पड़ मारे। और तो ये आपको किसने बताया कि वो हसन माफी? ये बेटे ने बताया, ठीक है। फिर उधर से पकड़ के इसको ले गए। एक मैं मतलब खुफिया जगह रखी हुई है इन्होंने, वो भी बेटे ने बताया रखी हुई है। उधर कहता मम्मा मुझे ना इन्होंने 8 दिन रखा है, हम 7 लड़के थे, ठीक है, 7 लड़कों को इकट्ठा ही पकड़ा इन्होंने अलग-अलग जगहों से, ठीक है। उधर का जब कहता हम गए 1 हफ्ता रखा इन्होंने। 1 हफ्ते के बाद जो उसके बीच में ही कहता मारते रहे, हमें 4-5 दिन मारते रहे। और फिर एक दिन जो आखिरी दिन था ना, हमारा 8वां दिन था, तो उस दिन इन्होंने ना 25 मौलवी थे सर, 25 मौलवी और 7 लड़के थे सर। इतना जुल्म किया, इतना मारा सर कि बस अल्लाह ही हाफ़िज़ था इनका उस वक़्त, ठीक है। जब मार के कहते हैं, बेटा कह रहा था कि मम्मा जब इन्होंने मारा ना, एक मौलवी मार के थक जाता था, फिर दूसरा शुरू होता, फिर दूसरा शुरू। 25 मौलवी थे, मुसलसल 3 घंटे मारा इन्होंने, मुसलसल, पानी नहीं पूछा, ऐसे मारते रहे। जब आखिरी घंटा था ना, तीसरे वाले, उसमें इन्होंने कहते नंगा किया, हमें नंगा करके इन्होंने तारों से मारा है और जुर्म कबूल करवाया कि लिखो यहाँ पे, और वीडियो भी बनाई साथ। जुर्म अगर आप झूठ भी बोलते हैं या वहाँ पे जाके कुछ कहेंगे, तो हम आपको आपकी ये वीडियो और जुर्म जो आपने कबूल किया, हम ये
दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर कहते हैं जब मार के वीडियो बनवाई और कहते अगर आप लोगों ने बाहर बच्चों को या जेल में हम आपको पहुँचाएंगे ना, पहुँचेंगे, जब उधर आपने अपने घर वालों से बताया ना तो वो घर वाले जैसे आपको पकड़ा, आपकी बहनें घर हैं जवान, कहते हाँ जी हैं, कहते फिर उनके साथ भी जुल्म हम करेंगे, हमें कौन सा पूछने वाला कोई है, हम तो खुफिया काम कर रहे हैं। तो सर बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। 2 बेटियां जवान हैं, ये बड़ा था तो एक छोटा है बेटा है। तो शोहर जो है इसी वजह से, टेंशन की वजह से वो शुगर हो गई है उनको, एक दफ़ा अटैक भी हो गया इतनी परेशानी की वजह से। सर बहुत मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बताएं हम क्या करें, किसको कहें जाके। हमारे रिश्तेदार भी बातें करते कुरान पाक हफ्ज़ करके, फिर भी ये आपके बेटे ने ये काम किया है। तो अब ये बताएं कि हाफिज़ किया हुआ है वो कैसे कह सकता है, ठीक है। फिर इसने ना इन्होंने ना मेरे जो मामू का बेटा है ना उसको इन्होंने फ़ोन किया है कि उन्होंने नंबर पूछा, सो फ़ोन को बताया कि ये आपका बेटा पकड़ा गया है तो आप करें। फिर वहाँ पे उन्होंने कहा जी हमें इतने पैसे दे दो। कितने पैसे मांगे? 50 लाख मांगा था। तो कहते इतने पैसे दे दो हम छोड़ देंगे, वो भी हम इस बात पे छोड़ेंगे, अगर आपने कर दिए तो ठीक है, और उसके बाद भी हम सोचेंगे कि छोड़े या ना छोड़े, ये तो बहरहाल छोड़ देंगे। दोनों धमकियाँ लगाई साथ। तो अब ये बताएं कि हम क्या करें, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इतनी मुश्किल से अब अटैक हुआ है, लोगों से पैसे मांग के गुजारा कर रहे थे, अब तो उन्होंने लेना देना भी जो ना छोड़ दिया है। अब ये बताएं मैं मजदूर करती हूँ घर का काम करके, तो बताएं हम क्या करें। ये दास्तानें शायद कुछ असर करें। हर कहानी में हमेशा सबसे बड़ा निशाना माँ होती है, जो सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करती है, जिसको सबसे ज़्यादा अजियत का सामना करना पड़ता है। और फिर एक आम आदमी, एक आम शख्स हर हफ्ते जेल में जाकर अपने किसी बच्चे से मुलाकात नहीं कर सकता। ये कोई आसान काम नहीं है। आप सब्र करें कि एक माँ जिसके बच्चे को 2 साल से 3 साल से जेल में रखा हुआ है, जिस पर तशद्दुद हुआ है, जिसके पास अपनी जॉब वगैरह नहीं है, या जिसका घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो हर हफ्ते जाकर अपने बच्चे से मिलती है और उसकी अजियत बढ़ती जाती है। अब हम आपसे बाद में बात करते हैं। थैंक यू। अगली कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। मेरे सामने हलीमा बीबी बैठी हैं। इनके बेटे को जो कैडेट कॉलेज में पढ़ रहा था और वो कैडेट था, और उसकी उम्र उस वक्त 15 साल थी जब इसको ट्रैप किया गया। और ये जुलाई 2022 में ये बच्चा गिरफ्तार हुआ। और ये अकेला नहीं था, इसके अलावा भी एक बंदा इस केस में गिरफ्तार हुआ था, ब्लास्फेमी केस में, ये भी ट्रैप हुआ था। और फिर इस बच्चे को उम्र कैद सुना दी गई, और अब भी उसकी उम्र जो है वो शायद अब 18 साल हो चुकी है, 19 साल हो चुकी है। फिर उसको सजा सुना दी गई। जब ये गिरफ्तार हुआ उस वक्त उसकी एग्जैक्ट उम्र क्या थी? 16वें साल में था। 16वें साल में था। हाँ जी। मैंने 15 साल का माजरत, वो 16वें साल में था। छुट्टियों में घर आया था, यानी कानूनी तौर पर वो नाबालिग था, नाबालिग था, जुमलाई, अंडर एज। और कैडेट कॉलेज से छुट्टियों पे घर आया है। छुट्टियों में घर आया था। हम लोग लाहौर गए दादू को मिलने के लिए। उधर से लड़की की कॉल आती है, मैसेज आता है तो मिलने के लिए कि मुझे आप होटल में मिलने आए। शायद इनकार कर दिया, छोटा था नहीं जा सका। किसी लड़की ने फोन किया इसको? लड़की ने। अब इसको थोड़ा करीब कर लेंगे। हाँ जी, लड़की ने। तो वो होटल में नहीं गया, तो फिर वो 5-7 दिन कहती रही है कि चलें आपने होटल में नहीं आना, आप मुझे पार्क में मिलने आ जाएं, सोसाइटी के पार्क में। तो बच्चा मुझे कहता मामा आप मेरे साथ चलें, मैं आपको इतने दिनों से कह रहा हूँ। कैडेट कॉलेज वॉक के लिए कहते हैं कि आपने रिपोर्ट हमें देनी है, तो आप मेरे साथ नहीं जा रही। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बिज़ी थी। तो वो बच्चा खुद ही तैयार हुआ है और निकल गया है। हमने CCTV कैमरे में देखा है कि बच्चा मुसलसल मैसेज करता हुआ गली में से गुजर रहा है। वो वहाँ पे पार्क में गया है, जैसे ही वो जाता है तो बच्चे को उठा के वो गाड़ी में डाल लेते हैं।
अब मुझे नहीं पता था, असर से मगरिब, मगरिब से इशा हो जाती है। मैं जब थक हार के एक पार्क से दूसरे पार्क में, गलियों में, मार्केट में जब अपने बच्चे को ढूंढती हूँ, मेरा बच्चा नहीं मिलता, मैं घर आ जाती हूँ। फिर अननोन नंबर से मुझे कॉल आती है, आपका बच्चा हमारे पास है, इसने तौहीन मज़हब की है। तो मैं कहती हूँ ये कौन सा होता है, कौन सा इल्ज़ाम है ये? तो वो कहते हैं कि आपके बच्चे ने ये किया है, मतलब मज़हब तौहीन किया है। तो मैं कहती हूँ उन्हें, मैं मिन्नत करती हूँ फ़ोन पे, अल्लाह का वास्ता है, खुदा रसूल का वास्ता है, हम ऐसे नहीं हैं, मुसलमान घराने से हम ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा बच्चा मुसलमान फैमिली में पैदा हुआ है, मेरे बच्चे ने ऐसे नहीं किया, अल्लाह रसूल का वास्ता है मेरे बच्चे को छोड़ दें। फिर हम किसी को कह के, मैं उसे कहती हूँ कि मुझे अच्छा सुबह अपने बच्चे को मिलने दें, मेरा बच्चा छोटा है, ये तो मर जाएगा, आज रात ये बाहर रहा तो इसे कुछ हो जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया। मैंने जब अपने बच्चे के चेहरे की तरफ देखा, मुझे अंदाज़ा हो गया रात को इसके साथ क्या हुआ है। आप यकीन करें, जब वो बच्चों को जेल में लेके आते हैं, ट्रायल के लिए लेके आते हैं, पुलिस वालों ने हथकड़ियाँ लगाई होती हैं, उस माँ पे क्या बीतती है। वो जब अपने बच्चे को हथकड़ियों में देखती है, जानवरों की तरह खींच के लेके आ रहे होते हैं, उस माँ पे क्या बीतती है। मुझे चौथा साल शुरू हो गया, मेरा बच्चा जो छोटा अंडर है, जो उसका फ्यूचर तबाह हुआ, उसकी ज़िंदगी तबाह हुई। वो कैडेट कॉलेज में, आर्मी में जाना चाहता था। मैंने दुआएं करके, वजीफ़े करके कैडेट कॉलेज में उसको दाखिल करवाया, अपने अल्लाह के सामने मिन्नत अल्लाह करके। मेरे बच्चे के 4 साल, कोई हिसाब देगा मेरे बच्चे के 4 सालों की? मेरे बच्चे की पढ़ाई ज़ाया गई, बच्चे को अंदर पढ़ने नहीं देते। मैं मिन्नतें करके, हाथ जोड़ के किताबें दे के आती हैं। उसने मैट्रिक के पेपर उधर दिए, 9th क्लास का रिज़ल्ट जब बच्चा जेल में जाता है उस टाइम आता है, 100% उसने नंबर लिए। फिर 10वीं के क्लास का पेपर दिए तो उसमें नंबर उसने उतने ही लिए जितने कैडेट कॉलेज में लिए थे। अब दोबारा से उसने पेपर दिए तो उसके उसी तरह से नंबर है, वो अपनी मदद आपके तहत पढ़ते हैं। मैं घर से कभी बाहर नहीं निकली थी, अब मेरा ये हाल है। मैं कोर्ट कचहरियों में वकीलों के दरमियान में जाके खड़ी होती हूँ, ना महरम लोगों के दरमियान में खड़ी होती हूँ। मैं जेल में जाती हूँ, तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की नजरें होती हैं। मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। अल्लाह के वास्ते मेरा बच्चा छोटा है, कोई मेरा बच्चा मुझे लेके दे दे रियासत से। आपका बच्चा कैडेट कॉलेज में था, हमारी तो हर तरफ कैडेट ही कैडेट है, इतने फौजी हैं, फौजियों की हुकूमत है और ताहयात किस्म के फौजी हैं हमारे पास। तो आप फौजियों के पास नहीं गए, किसी GHQ में जाती या कहीं और जाती? सर शुरू में मुझे वकीलों ने डराया, ये मसला ऐसा है, आप चुप हो जाएं। मुझे वकील ने यहाँ तक कहा आप अपनी छोटी बच्चियों को लें और इस यहाँ से गायब हो जाएं, इस यहाँ से चली जाएं। आप हमें इतना डराया कि आप यहाँ से चले जाएं, आपके घर को आग लगा देंगे ये लोग। मुझे ज़्यादातर वकीलों ने भी डराया। जब मुझे, वरना हो सकता है मैं चली जाती तो वो मेरे बच्चे को ले लेते। वहाँ के प्रिंसिपल ने भी कहा वो हमारा कैडेट था, आप हमें बचाती, हम उसे ले लेते। अब टाइम बहुत गुजर चुका है। फिर उसके बाद जब बच्चे का ट्रायल चला, उसको सज़ा हुई, उस दिन हमें पता था, मेरी बच्चियाँ ये कह रही थी कि आज हमारी मामा हमारे भाई को घर लेके आएगी। जब मैं वापस लौटी, जब उस दिन सज़ा हुई सर, आप सोचें उस वो रात हमारे पे कितनी भारी थी। मर तो हम पहले गए थे, जिंदा लाश तो मैं पहले ही हूँ, मेरे में है कुछ नहीं है। या मेरा बच्चा ले दें या फिर हम सारी माँ को फांसी के फंदे में लटका दें। हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। इससे ज्यादा और जज्बाती क्या बात हो सकती है और क्या कुछ जुजियात बयान की जा सकती हैं? मैं समझता हूँ कि ये शायद जो कोर कमांडर साहब हैं या जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं या जो हमारे दीगर जो आला बड़े ओहदेदार हैं फौज के, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए और इसमें तो कोई शक नहीं कि वो ताकतवर हैं। हम इस्लामी माशरे में रहते हैं, यहाँ पे हम खौफ व खरास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। मेरी बच्चियाँ घर से बाहर स्कूल जाती हैं तो मैं ऐसे दिल को थाम के बैठी रहती हूँ, अल्लाह करे बच्चियाँ घर आ जाएं। मेरा बच्चा अंधेर कोठरी में इन्होंने बंद कर दिया है। वो छोटा बच्चा था, उसे पागलों के साथ बंद किया, उसे बड़े लोगों के साथ बंद किया, उसे नहीं अजियत का शिकार है जैसे मैं हो गई हूँ। बच्चियाँ मेरी डिप्रेशन में चली गई हैं, मेरा घर लूट गया, मेरे सर पे छत नहीं रही, मैं किसी के घर में रहती हूँ, मेरी ज़मीन जायदाद प्लॉट सब कुछ बिक गया, गाड़ियाँ बिक गई, बादशाह से हम फकीर हो गए हैं। इनके पापा बेहोश होके गिर जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं
क्या कोई आदमी इसका जवाब दे सकता है? क्या इस रियासत में इंसाफ है? क्या यहाँ की अदालतें इंसाफ करती हैं? और क्या इस मुल्क के आइन में ये लिखा हुआ नहीं कि एक नाबालग को अदालतें सज़ा नहीं दे सकती? एक नाबालग जिसकी उम्र 15 साल है, जो एक कैडेट है और जिसकी माँ ये बता रही है कि वो 100% मार्क्स लेता है और जेल में भी उसने नहम और दहम नामी दसवीं में 100% मार्क्स लिए हैं, क्यों? और फिर माँ का ये भी कहना है कि या तो फिर उसको छोड़ दें या हम सबको मार दें। इनके घर बिक गया है, इनके प्लाट्स बिक गए हैं, जमा पूंजी खत्म हो गई है, इनके मियाँ जो हैं वो बीमार हैं। इससे ज़्यादा और बड़ी दास्तान क्या सुनना चाहते हैं हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, हमारे वज़ीर आज़म साहब और हमारी वज़ीर आला जो कहती हैं, बड़ा फ़ख्र महसूस करती हैं कि मैं माँ हूँ, वो सबकी माँ आ गई है। तो माँ इधर भी देख ले, ये रियासत भी एक माँ होती है, वो इधर भी देख ले। और फिर सबसे अहम बात ये है कि ये गैंग मौजूद है, उस गैंग के करीबी लोग, उस गैंग के अरकान के रिश्तेदार यहाँ पर एडवाइज़र हैं, यहाँ पर टीवी पर बैठकर वो भाषण देते हैं, तलावतें करते हैं, वो पता नहीं किस इस्लामी किसी ऑर्गेनाइजेशन के सदर भी हैं। तो क्या हो रहा है इस मुल्क में? अगर आपने मीडिया को पाबंद कर दिया है कि टीवी कोई इस पे बात नहीं कर सकता, अखबारात बात नहीं कर सकते, ये लोग तो सामने बोलती हुई कहानियां हैं। क्या इन कहानियों को कभी किसी ने सुना है? शाम को कोई दानिश्वर बैठेगा किसी यूट्यूब पर और कह देगा कि ये साथ ब्लास्फेमी करने वाले हैं, या इस माँ में आपको नजर आती है कि इसकी औलाद ब्लास्फेमी करेगी? ये माँ तो उसको पढ़ा रही थी, उसको फौजी बनाना चाहती थी और वो बन भी जाता जितना वो ज़हीन बच्चा है। मैंने लोगों के बच्चों की तरबियत की। ये माइक ले ले। मैंने दुनिया के बच्चों की तरबियत की। मेरे पढ़ाए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बने, मेरा बच्चा जेल में बैठा हुआ है। और ये मुस्तकबिल है इस मुल्क में जहाँ इंसाफ नहीं है, जहाँ पर अब ये नौबत पहुँच गई है। अगर इनके बच्चे ने किसी को कत्ल किया होता, किसी पे फायरिंग की होती या किसी के साथ फ्रॉड किया होता तो कोई और नौयत होती। इनके बच्चे को मजहब के तौहीन मजहब के एक गैर साबित शुदा इल्ज़ाम का सामना रहा और उसके बाद उसको उम्र कैद और वो जेल की कोठरी में है। और उसका फ्यूचर क्या होगा? 700 बच्चे जो हैं उनका क्या फ्यूचर है इस मुल्क में? तो हम आपसे बात करते हैं। हाफिज साहब, आप माइक ले लें। आप आलिम दीन भी हैं, आप जो है आपका बेटा हाफिज कुरान भी है। आपने इन माओं की कहानियां सुनी हैं। जाहिर है आपकी अहलिया मोहतरमा जो है वो भी एक माँ है जिनका बेटा जेल में है। आप क्या कहना चाहेंगे इस निज़ाम को और इन ऐसे बिजनेस जो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग्स हैं उनको और उनके हमायतियों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम तो हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करते हैं कि जो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग है, इसको स्पेशल ब्रांच ने भी कहा है कि ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग है और भी कई सरकारी इदारों ने कहा है, तो कम अज़ कम अदालतों को चाहिए कि वो इंसाफ करे, देखे, तहकीक करे कि आया वाक़तन ये हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो जो वाक़तन मुजरम हैं, जो असल जो ब्लास्फेमी ये खुद कर रहे हैं, तो इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ये जो सरकारी इदारे भी जिनके नीचे दबे हुए हैं, आखिर वजह क्या है? इनके पीछे कौन सी ऐसी बड़ी ताकत है कि जिसकी वजह सरकारी इदारे भी खामोश हैं? अब आपने देख लिया कि कितने FIA के अफीसरान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और वही सरफराज चौधरी जो वकला को जो कह रहा है कि कोई आदमी उसका नाम सरफराज चौधरी क्या कहा? सॉरी जी, उसका नाम सरफराज चौधरी है। वकीलों को आपने वीडियो देखी होगी, सबने देखी है वीडियो, कि वो जो वकीलों कह रहा है कोई आदमी इनका केस न लड़े, ये गुस्ताख हैं, ये तौहीन, खुद उसने अरबों रुपया कमाया और खुद उसने अरबों रुपया कमाया। ऐसा खबीस इंसान जो है वो क्या नाम है, कौन से इस्लाम का दावेदार है या कौन सा आशिक रसूल है? ये इनके अंदर कौन सा इश्क है? जावेद साहब, आप मुझे बताएंगे कि आपको बाहर क्या रिस्पांस मिलता है सोसाइटी में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, जिनको पता चलता है कि आपका बेटा जो है वो तौहीन के मुकदमे में जेल में है? देखिए जी, मैंने तो पहले दिन सबको बताया था कि मेरा बेटा इस इल्ज़ाम में पकड़ा गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये इनकी चालाकियाँ शुरू से नज़र आ गई थी और मैंने उन सबको बताया था कि एक दिन आएगा कि
कि मैं आपको ये साबित करके दूंगा कि ये बच्चे ट्रैप हुए हैं और इन बच्चों को इस तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में फंसाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया जिसमें कमीशन बनने की इस्तदा की गई और ये कहा गया कि इट इज़ अ मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी, ठीक है, और इतनी ज़मानतें हो गई, तो उसके बाद मैं उनको जाके बताया कि ये आप देख लें, मैं जो कहता था मैं झूठ नहीं कहता था, मैंने जो कुछ आपको बताया था उस वक्त सच बताया था, लेकिन चूंकि वो कोई साबित नहीं हो सका था किसी अदालत में, अब अदालत का फैसला भी आ चुका है और ये साबित हो चुका है। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, असल में ये गैंग जो है ना इस कानून को ही ख़त्म करवाना चाहता है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो नबी पाक की हुर्मत को नुकसान पहुँचाना चाहे। नबी पाक की शान, उनकी हुर्मत, उनके नाम के पीछे मैं, मेरे माँ बाप, मेरे बीवी बच्चे सब कुर्बान। इन्होंने ये कानून का गलत इस्तेमाल किया, इन्होंने कौन कौन से आर्टिकल्स को वायलेट किया, अपने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया, झूठी गवाहियाँ, झूठा सिस्टम, इसने इसके अंदर इन्होंने वो बना दिए कि इस पूरे कानून को ही ये ख़त्म करवाना चाहते हैं और इसको ये साबित करना चाहते हैं इस तरह की करके कि ये देखें जी इतने लोग कैद हैं, लेकिन वो किस इल्ज़ाम से कैसे कैद किए गए हैं, कैसे फंसाए गए हैं, ठीक है, कमीशन बनाए, सारे मामला सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी। और अक्सर ये कहते हैं वो कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं यूट्यूब पे कि ये फ़लाँ ऐसा फ़लाँ ऐसा फ़लाँ ऐसा, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा बाप जो है उसने 65-71 की वार लड़ी है, वो इस मुल्क से बाहर नहीं गया, असाइलम लेके बाहर की शरीयत हासिल नहीं की, इसी मुल्क में रहा। जब इस मुल्क में बड़ा वक्त आया उसने अपनी जान का नजराना पेश किया, बहादुर बना, भागा नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगी और कि आपके जो रिश्तेदार हैं, जो मोहल्लेदार हैं और जो भी मिलने वाले हैं, वो उनका रवैया कैसा है? उनका रवैया तो हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं जिस जगह पे मैं बैठी हूँ, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, इस जगह पर मदइयों की माएँ और बहनें जो अंदर हैं वो बैठे हों, वो कैसा लगेगा? आज हमारे बच्चे ड्रेस सेल में हैं, वो अगर हमारी जगह होकर बैठती हैं सबके सामने, हम शरीयत क्या यही कहती है कि औरतों के साथ बेइंसाफ़ी करो, मर्दों गैर मर्दों के सामने आए, बैठे बातें करें, उनको खुशी महसूस होगी। पाकिस्तान का तो ये नाम बदनाम कर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बच्चों के हाथ में, जवान नस्ल के हाथ में है। ये जवान नस्ल को ही बेरुमती करवा रहे हैं, अंदर कैद कर रहे हैं। ये गैंग जो है झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। जो आयशा बीबी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका बेटा सलीम जो नवंबर 1 साल हो गया है जी, आप जहाँ रहती हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, उनका रवैया कैसा है जब उनको ये पता चला? जाहिर है पता हर एक को चल गया होगा कि बच्चा किस इल्ज़ाम में कैद है। हमारे गांव में तो सबको पता है, लेकिन अपनी फैमिली यानी कि अपने ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग हैं, बल्कि सभी लोगों को हमने बताया नहीं है। यही है कि काम पे गया हुआ है, मजदूरी पे गया हुआ है, उधर गया हुआ है, इधर गया हुआ है, झूठ पे झूठ बुलवा लें, अल्लाह इनको गरक करे। तो बाकी फिर सामने कोई कुछ कहता नहीं है, घर बैठ के तो सब बातें करते होंगे कि ये गुस्ताखों की माँ हैं, बहनें हैं। अल्लाह का शुक्र है, आलम और हाफज़ों की माँ हूँ मैं, मुझे फ़ख्र है इस बात पे। तो मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह इनको गरक करे, हमारी जगह से भी अगर 70 से 72 जाएँ, इनको पता चले कि हमने किसी को माँ को रुलाया है। तो इंशाअल्लाह और कोई किसी ने सुना ना सुना, लेकिन हमारी फरियाद हमारा खुदा ज़रूर सुनेगा, वो हमारा ज़रूर सुनेगा। सादिया बीबी, आपसे भी यही सवाल है कि इस इल्ज़ाम के बाद अब तो 3-3.5 साल हो गया आपका बेटा अंदर है। हाँ जी। खानदान में, फैमिली में, रिश्तेदारों में क्या आसानी है? सर बहुत मुश्किल है, बहुत जलील करते हैं, बहुत जलील करते हैं, हमें उधर रहना मुश्किल कर दिया इन्होंने। एक तो ऊपर से ये इल्ज़ाम, ऊपर से इन लोगों की बातें, इन लोगों की कहानी, दूसरे घरों में भी जाके ये बातें करते हैं कि इन्होंने ऐसे किए, ऐसे किए। तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा ज़िल्लत उठा रहे हैं। सर हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, मुझे ये बताएं।
हम तो मकान भी चेंज नहीं कर सकते, दूसरी जगह इतने वो नहीं है हमारे पास जो हम दूसरी जगह चले जाएं, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हलीमा, आपकी कहानी की जो जुज़ियात है वो बहुत तकलीफ दे है। आपके बाकी कितने बच्चे हैं और आपकी फैमिली जो है वो उस महल्ले में, उस इलाके में या आपके अपने रिश्तेदारों में आप किस तरह जो है वो सामना कर रही हैं या किन हालात का सामना कर रही हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, साथ ही इस बेटे के, बेटियां छोटी हैं। मैं अपनी जहाँ पे रह रही हूँ, आपको पता है ये शरीका होता है, दरानी जठानी, लोगों ने मुझे काफिर कहना शुरू कर दिया है। जो माँ 7 टाइम नमाज पढ़ती है, दरूद पाक का विर्द करती है, अपने अल्लाह के सामने तहज्जुद में आंसू बहाती है, क्या अल्लाह उन आंसुओं की लाज नहीं रखेगा? अल्लाह जालिम नहीं है, हम लोग जालिम हैं, हमारा माशरा जालिम है, जिसने इतने छोटे बच्चे का भी लिहाज नहीं किया। वो छोटा था, उसको तो छोड़ देते, उसको तो देख लेते, उसका बचपन, उसकी जवानी वहाँ पे जेल में गुजर रही है, उसकी बहनें डिप्रेशन में चली गई हैं, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरे सर पे छत नहीं है, मेरे पास अपील के अब पैसे नहीं हैं। वकीलों ने इतना हमारे से पैसा लिया, इतना पैसा लिया। शुरू में जब उन्हें पता था कि केस नहीं होगा अभी, तो वो हमारे से पैसा ना लेते। उन्होंने पैसा मुद्दइयों के नाम पे भी मेरे से लिया। कैसे? कि हम आप इतने पैसे दे दें, हम फलां बंदे को, FIA के बंदे को देंगे तो ये काम हो जाएगा, बयान सही हो जाएंगे। लेकिन वो मुझे लगता है खुद रखते रहे पैसा। अंदाजा बता सकती हैं कितने पैसे आपने? मेरे से उस 2 लाख उन्होंने मांगा था उस टाइम कि हम देते हैं, तो उस टाइम मैंने उन्हें दिया था फीस। उसके अलावा वो अपनी कुर्सियों से उठ के अदालत में नहीं जाते थे कि बच्चा जो नाइल है, बच्चा अंडर एज है, बच्चा छोटा है, इसको छोड़ दें। उन्होंने साबित नहीं किया। तो आपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह दीगर चीज़ें नहीं? मैंने सब कुछ लगाया, मैंने अपने बच्चे के स्कूल के सर्टिफिकेट लगाए, मैंने सब कुछ उसमें लगाया, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे बच्चे को उम्र कैद सज़ा होगी। क्या बाहर के मुल्कों में छोटे बच्चों को सज़ा दी जाती है, जेलों में डाला जाता है? मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से मैं ये कहती हूँ, वो एक माँ है, माँ का दिल तो नरम होता है, हम माँओं के दुख से क्यों नहीं नजर आते? अल्लाह करे वो वक्त आए कि आपके बच्चे जो हैं वो अब घरों में आए, अपनी माँओं के पास आए और ये जो जुल्म है, इसका जो सिलसिला है, ये ख़त्म हो सके। हम चाहेंगे अगर कुछ सवालात आप करना चाहते हैं इनसे, लेकिन एक दरख्वास्त है, आपने देख लिया है कि इनके हालात कैसे हैं, ये कितने तकलीफ़ में है, कितनी अजियत में है। ऐसा सवाल ना कीजिएगा कि इनकी अजियत में इजाफा हो। बाकी ये सामने बैठे हैं, हाफ़िज़ साहब बैठे हैं, खाला साहब बैठे हैं, हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं अंदाज़ा भी नहीं कर सकती कि आप लोगों को कितनी हम हिम्मत जमा करके इस किस्म के माशरे में, इस शहर में आके बैठना पड़े। और हर थोड़े दिनों बाद ना कुछ ना कुछ सुनना ज़रूरी होता, ताकि हम जिस माशरे में रहते हैं उसका जो गंदा चेहरा है ना, वो भी हमारे सामने आता रहे। मैं एज अ पर्सन, एज अ प्रिंसिपल बड़ा फेथ रखती हूँ सोसाइटी पे और ह्यूमैनिटी पे, लेकिन हर थोड़े टाइम बाद ना एक तमांचा पड़ता है मुंह पे, बंदा रियलिटी की दुनिया में वापस आता है। आज से 4 साल पहले मैं लाहौर में होती थी और मैं अस्पताल में काम करती थी, और हम अनारकली में बैठ के बात करते थे, और हमारे कुछ साथी होते थे। उस वक्त ये नया धंधा शुरू हुआ था, और हमारे कुछ साथी होते थे वो इस चीज़ को जस्टिफाई करते थे कि ये एक इस्लामी मुल्क है, इफ़ यू डू नॉट फिट दैट क्राइटेरिया ऑफ अ मुस्लिम, ठीक है, तो ये एक लेजिटिमेट क्लेम है कि वो फ़लाँ ने गुस्ताखी की। आई होप कि वो सब लोग ये प्रोग्राम देखें और वो देखें कि जिस स्टैंडर्ड पे हम किसी को जज कर रहे हैं उसमें हम में से कोई भी अच्छा मुसलमान नहीं है, कोई भी नहीं। आपके बच्चे हैं, ये इधर नहीं रुका तो मैं होंगी, मेरे बाद कोई और होगा, और उसके बाद कोई और होगा। जो इधर शिकारी हैं वो हम सबको खाएंगे एंड पे, ठीक है, और सिर्फ कुछ लोगों का पेट भरेगा। और देन कमिंग बैक टू द पॉइंट के सूरह आले इमरान आयत नंबर 140
खुदा हमारा जिसको हम रहीम समझते हैं, जिससे हमें पूरी ज़िंदगी डराया गया, ठीक है, कि वो जाबिर है और वो कहार है, वो उससे पहले रहीम है और वो शफीक है। शुक्रिया। वो सूरह आल इमरान में फरमाते हैं कि सर जस्ट दिस कमेंट कि वो सूरह आल इमरान में फरमाते हैं कि दिन बदलेंगे, आज तुम ऊपर हो और कोई और नीचे है, तो कल तुम ऊपर होगे और कोई और नीचे होगा। तो मोर पावर टू यू पीपल, मैं माजरत ही कर सकती हूँ इस माशरे की फ़र्द होने की हैसियत से। शुक्रिया। जय साहब, सवाल आपसे है, इन मज़लूम लोगों से नहीं। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी कवर किया इस पूरे केस को, सारे मामले को। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है कि कुफर पर माशरे जो हैं वो बाकी रह सकते हैं लेकिन जुल्म पर नहीं। एक जेन्युइन सवाल है कि इल्ज़ाम ऐद किया गया, 400 साढ़े 400 मुकदमात हैं, 700 से ज़्यादा लोग अंदर हैं। वो क्या रियासत की ऐसी वजूहात है, मजबूरी है कि इसको प्रोब करने के लिए, इसको दोबारा रिविज़िट करने के लिए इस सारे मामले इल्ज़ामात को जायज़ा लेने जुडिशल कमीशन की राह में रुकावट बन रहे हैं, और वहाँ पर हाई कोर्ट के डीबी बैठ के उस सारी प्रैक्टिस को जो कई माह पर मुश्तमिल है, जस्टिस सरदार इसहाक ने की, उसको रोक दिया जाता है और किसी को टस से मस भी नहीं होता। गिला शिकवा उनसे नहीं है कि वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बंदूक अंदर करवा रहे हैं, वो जो रियासत के ठेकेदार हैं वो किस पे खामोश हैं? आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ कि ये एक खौफजदगी है जो इन अहले इक़्तिदार ने खुद से पाली हुई है। ये खौफजदगी वो है जिसका हम सामना करते हैं साल में कई मरतबा। कभी TLP आ जाती है, कभी कोई आकर डांगे उठा के आ जाता है। तो ये इस खौफजदगी के पालनहार भी यही है, डरते भी यही हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम मौका था कि एक मुअज़्ज़ज़ अदालत ने फैसला किया कि इस पर कमीशन बनना चाहिए, जिसने 42 के करीब जो हेयरिंग्स की हमने देखी, हमने सुनी वो सारी। और अगर कमीशन बन जाता और कमीशन में जो है वो बाकी जो मुद्दई पार्टी है वो भी अपना मुद्दा बयान करे, जाकर बताए, साबित करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले आपने भी देखा, हम सब ने देखा, वो कमीशन से भागते थे, कमीशन नहीं बना। अब सुना है कि दिसंबर में हेयरिंग है, नेक्स्ट अगली तारीख है, तो शायद ये कमीशन बन जाए। और मैं समझता हूँ कि इससे खौफज़दा नहीं होना चाहिए। अगर किसी शख्स पर कोई इल्ज़ाम लगता है, खुदा न खास्ता तौहीन का इल्ज़ाम लगता है, तो उसको पूरी आज़ादी होना चाहिए कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे। हमारे यहाँ गलत इल्ज़ाम लगाने की रवायत रही है इस मुल्क में। मैंने अर्ज़ किया, मैं 95 से तौहीन के मुकदमात की रिपोर्टिंग करता आया हूँ। मैंने सबसे पहला केस गुजरावाला रत्ता दूधड़ा में सलामत मसीह रहमत मसीह केस था, जिसको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने सज़ाए मौत दे दी और हाई कोर्ट ने उन दोनों को बरी कर दिया। चचा भतीजा थे वो, उनको बरी कर दिया। जैसे वो बरी होकर बाहर निकले हैं, बलवाइयों ने हमला किया और उनमें से एक को वहीं पर मार दिया। और उस केस की हैरान कुन बात यह थी कि उसके जो जज थे आरिफ इकबाल भट्टी, वो भी बाद में मर्डर हो गए कि इन्होंने ये फैसला क्यों दिया था। तो ये बहुत मौके थे ऐसे। हमारे सामने गवर्नर पंजाब को किस तरह कत्ल किया गया, हमारे सामने सियालकोट में प्रयांता कुमार जो हमारा मेहमान था यहाँ श्रीलंका का, उसको किस बेदर्दी से कत्ल किया गया। हमारे सामने डॉक्टर शाहनवाज को किस तरह कत्ल किया गया। अहमदपुर शर्किया में किस तरह कत्ल हुआ, एक पागल आदमी इसको कत्ल कर दिया गया। ये बहुत सारे मौके हमारे पास आए हैं कि हम इन केसेस को इनको ओपन करते, इनकी तहकीकात सामने आती। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जितने वाक़यात बताए हैं ये झूठे थे। इनमें लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया और मुल्ज़मान में से किसी को सज़ा भी ना दी गई। मशाल खान का वाक़या हमारे सामने है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को किस बेदर्दी से मारा गया और उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसी तरह हज़ारों ऐसे केसेस हैं, लोग अभी जेलों में हैं। ये तो इन बच्चों के केस हाईलाइट हो गए हैं, ये सामने आ गए हैं। इन माओं ने जद्दोजहद की है, इन लोगों ने जद्दोजहद की है, इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया इंसाफ का, ये ज़राए इब्लाग में गई हैं। गो के
आज तक किसी भी इदारे ने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज नहीं दी। इन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आए थे, ये लोग नहीं गए थे, इनको कवरेज नहीं दी गई। लेकिन उसके बावजूद ब्लैक होल जैसा एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर मेहरबानी है इनकी कि इन्होंने इनको मौका दिया इनको बात करने का, बात लोगों तक पहुँची है, अब लोग इसको जान रहे हैं। मैं समझता हूँ आज भी मौका है, आप कुछ ना करें, आप इन मुल्लाओं को इनको सजा ना दें, इन केसेस को तहकीक कर लें। इनकी जितने केसेस यहाँ पर हुए हैं जिसकी बुनियाद पर बेगुनाह लोगों को मारा गया है, जिसकी बुनियाद पर ये ग्रुप बने हैं सारे ब्लास्फेमी गैंग ग्रुप, और ये जो रिपोर्ट है जो हमने आपने पढ़ी है ये कोई इन लोगों ने बनाई है, ये कोई किसी सेकुलर ने बनाई है या किसी सो कॉल्ड किसी ऐसे बंदे ने बनाई है जिनको ये मुल्ला पसंद नहीं करते, ये स्पेशल ब्रांच ने बनाई है, जो पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच है उसने बनाई है, नाम लिखे हैं उसमें। अभी जिक्र हो रहा था हमारे बहुत मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं हमारे इस पाकिस्तान के अशरफी साहब, जिन्होंने सरेआम ये ऐलान किया कि मुझे आप फांसी दे दें, तो ये साहब बैठे हुए हैं, ये ख़वातीन बैठी हुई हैं, ये तो सरेआम नाम ले रहे हैं। तो ये अपने आप को तहकीक के लिए पेश करें, अपने भाई को पेश करें, कमीशन का सामना करें। अगर वो बेगुनाह है तो वो बेगुनाह होंगे, लेकिन इनके बच्चे क्यों बेगुनाही में मारे जाएं? तो मैं समझता हूँ रियासत ताकतवर होती है। अगर रियासत TLP का मक्कू ठप सकती है, अगर रियासत यहाँ लाल मस्जिद वालों को रोक सकती है, अगर रियासत यहाँ जो दहशतगर्द हैं, जो खुदकुश बमबार हैं, जो फ़िरका परस्त हैं, अगर CCD यहाँ पर सैकड़ों लोग 600 पुलिस मुकाबलों में सिर्फ जनवरी से लेकर अब तक 700 बंदा आप मार सकते हैं, बदमाश मार सकते हैं, तो इन मुल्लाओं को भी पूछा जा सकता है जो इस किस्म का कारोबार करते हैं, जो उन्होंने गैंग बना रखे हैं, जो बेगुनाह लोगों को अजियत दे रहे हैं, जो इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ इनका भी हो सकता है। अब मौका है, अब जाएं, तहकीक करें और इस तहकीक को सामने लेके आएँ। अगर इन बच्चों ने या किसी ने भी तौहीन की है तो जो कानून में सज़ा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जिसने तौहीन नहीं की है, मैं आपका ख़त्म करने से पहले कहना चाहूँगा कि एक ऐसा कैदी है जो आंखों से अंधा है और उसको कहा गया है कि इसने पता नहीं कितने 100 सफ़ात का मटेरियल तैयार किया है और उसके पास जो फ़ोन बरामद हुआ है वो नंबरों वाला फ़ोन है, वो स्मार्टफोन नहीं है। 3 साल 6 माह से वो जेल में, उसको कुछ उसके बारे में कभी किसी ने नहीं बात की। इसी तरह एक फैसलाबाद का एक शख्स है जो गिरफ्तार है, जो जेल में है। जब वो गिरफ्तार हुआ है तो उससे 1 हफ्ता पहले उसके मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, डेट लिखी हुई है उस पर, तो इससे साबित होता। और फिर सबसे आम सवाल ये है, इसमें सोचते क्यों नहीं है कि 24 करोड़ की आबादी में ये 30 लोग हैं जिनके सेंसर जो है वो लगे हुए हैं, जो ब्लास्फेमी पकड़ लेते हैं, कोई और नहीं है, बाकी मुसलमान नहीं है। मेरे सामने कोई गुस्ताखी करे मैं भी माफ़ नहीं करूँगा, मैं उसको पुलिस स्टेशन में जाऊँगा, मेरे पास सबूत हो, मैं उसके खिलाफ गवाहियाँ इकट्ठी करूँगा, मैं उसके खिलाफ केस करवाऊँगा। या ये जो 700-750 बच्चा है जिनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, ये इनको इन 30 लोगों ने सिर्फ जो है वो लोकेट किया है। और दूसरी तरफ पहले जिक्र हो चुका है, जिन लोगों ने इनको इन्वेस्टिगेट किया है वो सारे रिश्वत के इल्ज़ाम में कैद में हैं, उन पे पर्चे हुए मुकदमे हुए हैं। वो FIA के जितने अफसरान थे, जो सरफराज चौधरी और ये अवान साहब, पता नहीं कौन कौन है वो, तो इससे साबित होता है कि बहुत सारा मवाद है। मैं समझता हूँ कि रियासत के निज़ाम अदल के पास एक मौका है, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास एक मौका है, उस बेंच के काबिल इज़्ज़त बेंच के पास एक मौका है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, वो तहकीक करें, वो कमीशन बनाए, वो इनको बुलाएं और इनकी तहकीकात को सरेआम दिखाया जाए, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग दिखाते हैं, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर कोई एक शख्स नहीं उठेगा इस मुल्क में, अगर कोई मुल्ज़म साबित हो जाता है तौहीन करने वाला तो उसके हक़ में, लेकिन बेगुनाहों को आप गैर साबित शुदा इल्ज़ामात के तहत ख़ानदान तबाह कर दिए हैं। इस माँ का क्या कसूर है जिसके बच्चे ने कल को एक फौजी अफसर बनना था? क्या कसूर है उसका? इन माओं का क्या कसूर है? इनमें कितनी ये कोई तालीम याफ्ता है बेचारी, या ये लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं? तो मैं समझता हूँ एक शर्म का मकाम है, लेकिन एक मौका भी है साथ कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, आप एक कमीशन बनाएं और इन लोगों की अशिक्षोई करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़शान सैयद है, मैं कोर्ट रिपोर्टर हूँ और ये केसेस मैं भी रोज़ अव्वल से कवर करता हूँ।
والدین جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے نہ میرے پاس کوئی الفاظ ہے نہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ان کے دکھ درد یہی سمجھ سکتے ہیں، ہم صرف احساس کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے گناہ گار ہم خود ہیں، اور معاشرے کے فرد کی حیثیت سے ہم خود یہ ان تمام چیزوں کے گناہ گار ہیں۔ اگر کچھ مذہب کے ٹھیکیدار اٹھتے ہیں اور وہ مذہب کا سہارا لیتے، بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اس ملک میں کچھ ریاست کے ٹھیکیدار ہے، کچھ مذہب کے ٹھیکیدار ہے، اور کچھ جو ہے وہ جمہوریت کے ٹھیکیدار ہیں، اور ہم صرف ان کے جو ہے وہ تانے بانے ہوتے ہیں، ہم ان کے ٹاؤٹس بنے پھرتے ہیں۔ جب ایک ٹولہ اٹھ کے اور اس عظیم مذہب کا جو ہے وہ کباڑ بنا کے یا وہ مذہب کا ٹھیکیداری کرتے تو ہم نے کب روکا ہے ان کو؟ کسی نے کوئی بات کی ہے؟ کبھی کسی نے ان کے خلاف جو ہے کہیں جگہ پہ وہ اگر 10 15 20 لوگ جا سکتے اور ہمارے 700 800 بچوں کو والدین کو رلا سکتے ہیں، وہ ایک جعلی مقدمات بنا سکتے ہیں، ہم کہیں گئے ہیں ان کے خلاف؟ ہم نے کبھی ابھی جو ایف آئی اے کے جو مافیاز اریسٹ ہو گئے ان کے خلاف ہماری کوئی پٹیشن یا کوئی ایف آئی آرز گئی ہے؟ یا جن لوگوں کو جو ہم یہاں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، یہ ملوث ہے، ہم نے ان کے خلاف کوئی درخواست دی ہے؟ اور یہ کب تک ہم یہ چیزیں سہتے رہیں گے؟ کب تک یہ جو ہے نا وہ ایک ٹولہ اٹھ کے اور ریاست کو یرغمال بنائیں گے، ریاستی عناصر جو ہے وہ ریاستی اداروں کو یرغمال بنائیں گے، لوگوں کو اس طرح جو ہے وہ ذلیل کریں گے، خوار کریں گے، اور ہم کان پہ کان دھرے بیٹھے خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ہمارا معاشرہ کہاں پہ ہے؟ ہم کہاں سٹینڈ کریں؟ ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ چلو ان کے ساتھ ہو رہے چھوڑ دیں، ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہونے دیں، ہم اپنے آپ کو بچا لیں؟ جب تک ہمارے اندر یہ خاموشی ہوگی، اپنے آپ کو بچانے کے راستے ڈھونڈنے پڑیں گے، تب تک نہ میں بچا ہوا ہوں، نہ آپ ہے، نہ کوئی اور ہے، نہ کوئی اور ہے۔ آج جو ہے وہ 700 ہے، کل یہ 17,000 ہو سکتے ہیں، اور کل یہ 7 لاکھ ہو سکتے ہیں۔ تو بحیثیت جو میرا سوال ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں کہاں سٹینڈ کریں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں ہم سو کارڈ اپنے آپ کو کہ ہم بڑے سو کارڈ لیبرل ہے اور ہم بڑے جو ہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، ہم خود کہاں کھڑے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہم کہیں بھی نہیں کھڑے، اور ہم نے یہ جو مائیں بیچاری مصیبت کا شکار ہیں اور جن لوگوں کے ہم نے یہ تیسرا پروگرام کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک پروگرام کیا، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کتنی تکلیف ہے اس بات سے کہ ہم یہ تذکرہ بھی کیوں کر رہے ہیں۔ یہ وہ سوسائٹی ہے جس میں پورے ملک میں کوئی ایک شخص حلفیہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ خالص دودھ خریدتا ہے، لیکن کوئی اس کے خلاف بات بھی نہیں کرتا۔ ہم بہت ساری عبادات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ رمضان آئے گا تو ہر ایک چیز تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن نہ ملاوٹ ختم ہوتی ہے، نہ کرپشن ختم ہوتی ہے۔ تو سماجی سطح پر بھی یہی حالات ہیں، نا انصاف ملتا ہے لوگوں کو، لیکن ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ مجھے براہ راست میں بے تحاشا گالیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ میل کرتے ہیں، لوگ فون کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو کوئی اور بھی کچھ جسارت کرے، لیکن ہم تیار ہیں۔ میں یہ کمزور آدمی ہوں، کیا ہوگا، وہ مجھے کوئی مار دے گا، مار دے، لیکن میں آواز اٹھاؤں گا۔ ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اور ہم یقینی طور پر یہ سمجھتے ہیں، اور آپ کے آنے سے پہلے آپ موجود تھے، افتخار عرف کا بڑا معروف شعر ہے کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان۔ ہم سب ماننے والے ہیں، ہم سب درود پڑھنے والے ہیں، ہم سب جو ہیں وہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ وہی نبی آخر الزمان ہے، کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ تو اس خوف کے خلاف، یہ جو خوف ہے، یہ جو ظلم ہے، یہ جو جبر ہے، اس کے خلاف ہم آواز بلند کر رہے ہیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے، میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں بلیک ہول کی انتظامیہ کو بھی، کہ انہوں نے ان حالات میں ایک پلیٹ فارم دیا ہے اور بات کرنے دی ہے۔ یقینی طور پر اگر دوسرے لوگوں کے پاس کچھ ہو، ان کے پاس کچھ قوائف ہوں، تو وہ بھی بات کر سکتے ہیں، وہ کہیں بھی بات کر سکتے ہیں، ان کو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو ہر جمعے کے خطبے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ الزام لگا سکتے ہیں
वो इर्तदाद का, कुफर का फतवा लगा सकते हैं या इससे आगे बढ़ते हुए बाप पे हमला कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ये लोग जिनकी तादाद ज़्यादा है, जो करोड़ों में है, जब इनके ख़िलाफ़, इनके बच्चों के ख़िलाफ़ और इस तरह के जुल्म की हद जब भाई क्रॉस हो जाएगी, तब उनको एक सख्त जवाब मिलेगा शायद। लेकिन हम चाहते हैं, हम किसी तशद्दुद के कभी भी हमायती नहीं रहे, ना वकालत करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हम नबी रहमत के मानने वाले हैं, तो नबी रहमत की तालीमात के सदक़े में ही इन माओं पर और इन लोगों पर जो है इन्हें इंसाफ दिया जाए और इनके साथ जुल्म ना हो। जी मिजाज भाई, क्या हाल है? ठीक है। मैं आपकी विसासत से ये बताना चाहता हूँ कि देखें, ये हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है ना, दीन के नाम पे बना था, इस्लाम के नाम पे बनाया था, और ये देखकर सारा कुछ नज़र आ रहा है कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे मुसलमान लोग, हम मुसलमान हैं सारे, दीनी घरानों के बच्चे हैं जिनको इन निज़ाम में फंसाया जा रहा है। और हम हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग की है, सरदार एजाज साहब ने, दुनिया ने देखा है, साबित हुआ है, वहाँ पे रो साहब का नंबर इस्तेमाल हुआ है, रो साहब की गाड़ी इस्तेमाल हुई है, रो साहब ने एक बच्चे के मर्डर में वो मुलव्वस हैं। हैरानगी वाली बात है कि गवर्नमेंट सोई हुई है। खुदारा आप हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ, गवर्नमेंट को पता चले कि ये दुनिया ने देखा है कि ये क्या हुआ है। उसके बावजूद जो हमारा कमीशन नहीं बनने दिया जा रहा, खुदा रहा इन माओं के साथ, इनके बच्चों के साथ रहम किया जाए, इनके बच्चों को रहा किया जाए। बेकसूर पाकिस्तान में मुसलमानों के बच्चों को ही दीन में फंसाया जा रहा है। ये दीन के नाम पे मुल्क लिया था, सब मुसलमान बच्चे हैं, कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है जिसको कि उन्होंने कराया। सबको ट्रैप किया गया, हर बच्चे को ट्रैप किया गया। हर बच्चे की कहानी एक ही है, सिर्फ नाम मुख्तलिफ है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ ये 35-40 लोग ही हैं जिनको ये नज़र आता है कि ये ब्लास्फेमी हो रही है, बाकी सारी दुनिया सोई हुई है। सरदार एजाज साहब ने भी यही कहा था कि यार मुझे तो आज तक ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। आपने भी लाइव देखी, हमने, दुनिया ने देखी है लाइव, फिर भी हमारी हुकूमत सोई हुई है। खुदा रहा मोहतरमा मरियम नवाज साहब से गुजारिश है, इन माओं की फरियाद सुने, इनकी तरफ देखें, इन पे तरस खाएँ। खुदा रहा अपने बच्चों की तरफ देखें, इनके बच्चों की तरफ भी देखें। खुदा रहा सब के लिए कोई एक मतलब ही कोई अच्छा काम कर दें, ताकि ये 700-800 बच्चों की माओं को, उनके बहन भाइयों को, उनके ख़ानदानों को कुछ दुनिया में कोई रिलीफ मिल जाए। इनकी भी कोई अल्लाह ताला आसानी कर देगा। मकसद ये है कि ये देखें ना, सब देख रहे हैं, सबको पता है, उसके बावजूद गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। खुदा गवर्नमेंट से अपील के लिए ही कि इनका आवाज़ उठा रहे हैं। जी खुदा रहा, कोई और साहब बात करना चाहेंगे? मुख्तसर कि इन लोगों ने वापस भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम सर, जब मेरा बच्चा गिरफ्तार हुआ तो मैं FI ऑफिस में गया, तो नवीद असलम ASI सब इंस्पेक्टर उनका कहाँ पर था? लाहौर में। तो मैंने देखा उसके ऑफिस में एक फ़ाइल पड़ी हुई है, फ़ाइल में वो औरत की नंगी तस्वीर है, उसके ऊपर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है। ऐसा ही है, मैंने खुद देखा है, मैं खुद एजेंसी का आदमी हूँ, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। जब मैंने उसको कहा यार ये तो गैर मुस्लिम लोगों का काम है, आप मुस्लिम बच्चों को क्यों इधर रगड़े हैं, कहता है आप बाहर चले जाए। मैंने कहा ठीक है, आप साहब का है, मैं चला जाता हूँ, जो मैंने देखना था वो मैंने देख लिया। तो ये चीज़ें ये खुद FIA वाले खुद करते हैं। एक इन्होंने वो कटआउट ख़रीदे हुए हैं, जैसे हसन माविया है, जैसे ईमान लड़की है। ये ईमान लड़की कातिल है, इसका भाई कातिल है, इसका खामद कातिल है। ये इसने ख़रीदा राव अब्दुल रहीम एंड खंजीर के बच्चे ने। मैं कहता हूँ कि इसने ख़रीदा है, ये ब्लैकमेल किया इस लड़की को इसने। अभी वो एक लड़की कभी नाम कोई चेंज करती है, कभी कोई नाम चेंज करती है। मेरे बच्चे को उसने कहा कि आपको हम सैलरी देख रहे 50,000 रुपया, हमारे पास आ जाए। मेरा बच्चा घर में था, मैट्रिक तलीम थी, 10 पारे का कुरान हाफिज था। उसने कहा ठीक है मैं आता। जब उसने तस्वीर देखी उसने कहा उल्लू की पट्टी है, मेरे मोबाइल में क्या भेजा है? कहती है मुझे तो नहीं पता, मैं तो ऑफिस में काम कर रही थी, शायद किसी ने कुछ कहा, आप मेरे तरफ शेयर कर दें, मैं देख लेती हूँ क्या चीज़ है। ऐसे ही तो उसने शेयर की है, बच्चे ने उसको वापस भेजा है। बच्चे ने ये भी कहा मैं लाहौर आ रहा हूँ, आपके साथ मैं उधर बात करता हूँ। जब शेयर किया है तो उसने अपना मोबाइल ऑफ कर लिया है, वो FIA वालों के पास दे दिया। तो आपका बच्चा भी जेल में है? मेरा बच्चा जेल में। कितना अरसा हो गया? 1 साल 20 दिन हो गए सर। तो ये जो बातें मैं हकीकत कह रहा हूँ, मेरे पास मैंने अपना सोर्स लगाया है, उस हसन माविया के पास बंदा भेजा है,
کہ یار میرے بچے کی کیا غلطی ہے. کہتا مجھے 20 لاکھ روپیہ دے دو میں چھوڑ دیتا ہوں. جی میرے ساتھ بات ہوئی, سمجھ گئے. اس کا وہ بندہ مغل پورے میں رہا تھا, امیر معاویہ اس کا نام ہے. وہ میرے آفس میں کام کرتا تھا, میں سیکورٹی میں کام کرتا ہوں الکبیر ٹاؤن میں. تو اس نے کہا یار وہ 20,000 روپیہ مانگ رہا ہے. میں نے کہا یار میں غریب آدمی ہوں, تو میں 20,000 کہاں, اس کو 20 لاکھ کہاں سے دوں؟ میں تو 30,000 کی نوکری کرتا ہوں, تو میں اس کو کدھر دوں میں 20,000 روپیہ اور 20 لاکھ روپیہ. تو سر یہ گینگ جو ہے نا, یہ عبدالرحیم جو ہے, اس نے ہمارے دین کو بدنام کرنے کے لیے, دین کو بدنام کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک سفید چادر اوڑھی ہوئی ہے. اب ادھر درس بنایا ہوا ہے کہ میں بہت معزز آدمی ہوں, میں مولوی ہوں, لیکن حقیقت میں یہ کافر کا بچہ ہے. یہ تو جذبات ہیں لوگوں کے. ظاہر ہے اگر ایک شخص جس نے اپنی ساری زندگی اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ایک کسی سیکیورٹی ادارے میں جاب کی ہے, فوج میں ملازمت کی ہے, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے بچے ہیں. یہ جو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں نا, یہ شرم کے بارے میں آپ کو بتا دیں, انہوں نے اپنی چھتیں فروخت کر دی ہیں, انہوں نے اپنے گھر بیچ دیا ان بچوں کی خاطر. یہ کرائے پہ رہتے ہیں ابھی, یہ لوگ مڈل کلاس کے لوگ ہیں. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر نہیں یقین تو میں دکھا سکتا ہوں یہ سب کچھ. تو میں اپیل کرتا ہوں فیلڈ مارشل آصم منیر سے اور مریم نواز شہباز شریف سے کہ یار یہ ہمارے تفتیش کریں, ہمارے بچوں کی انکوائری کریں. سمجھ گئے, اگر ہمارے بچے گناہ گار ہیں تو ہمارے سامنے گولی مار دیں, نہیں تو ان لوگوں جو 30 آدمی ہیں 26 کروڑ عوام ہے, ان کو گولی مارے پھر ہمارے سامنے. اچھا اس میں میں جو ماں بات کرنا چاہتی ہیں, میں وہ بات کرنے اس پہ یہ بات. جی السلام علیکم. ہم لوگ فیصل آباد سے آئے ہیں ابھی, اور اب واپس جانا ہے. یہیں سے ہم نے بڑی مشکل سے پہنچے ہیں, اور کسی سے پیسے لے کے ادھار, اور بہت مشکل حالات ہیں ہمارے. میرا چھوٹا وہ مطلب بچوں کی طرح ہے میرے, جی میرے بچوں کی طرح ہے. میرا دیور ہے, 26 سال ہماری شادی کو ہے, وہ بہت چھوٹا تھا. تو اب آپ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان, مال, آل سب کچھ قربان ہے, اور وہ خاتم النبیین ہے. ہم لوگ, آپ یقین کریں کہ جو میرے سسر میرے والد صاحب ہیں, انہوں نے مسجد جگہ خرید کے مسجد تعمیر کروائی, دعوت اسلامی کو وقف کی ہوئی ہے. آپ بے شک تحقیق کر لیں. اور مطلب اتنا ہمارا مذہبی گھرانہ ہے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایسا. آپ یقین کریں کہ ان کی, میرے جو سسر ہیں والد صاحب, ان کو 2.5 سال ہو گئے ہیں پکڑے ہوئے نا, تو وہ فوت ہو گئے ہیں, مطلب اس کے غم میں وہ فوت ہو گئے ہیں. اور جو بیٹے کے غم میں, جی بیٹے کے غم میں. اور جو ان کی والدہ ہیں, یقین کریں ہر کسی کے آگے وہ ہر وقت روتی ہیں, آتے جاتے میرا بیٹا لا دو, میرا بیٹا لا دو. ان کی بات ہی یہ ہے, پیسے وہ اکٹھے کر کے تھوڑے بہت دیتی ہیں کہ اس کے لیے کچھ کرے, اس کو لا دیں. تو یہ تحقیق کی جائے نا صحیح طرح سے. ہم دیکھیں اسی بات کو پہنچانے کے لیے آئے کہ بے گناہ, بالکل بے, اس کے پاس جب ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ اتنا روتا ہے, حالانکہ بچے ہیں اس کے 3 بچے ہیں ان کا, مطلب ہم لوگ نہیں اتنا کر سکتے, ہم خود اتنے ہمارے وسائل نہیں ہیں کہ ہم کچھ کر سکیں اس کے لیے. تو اس کی بیوی جو ہے وہ بھی دیکھیں بوڑھی ہو گئی, بالکل بیمار ہے, اس کا کوئی حال نہیں ہے. 2.5 سال میں ہم پورا خاندان جو ہے اتنی اذیت میں, اتنا رل گئے ہیں صرف اس بچے کے پیچھے. اب ہماری بھی کوئی بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اتنی کہانیاں ہیں اور اتنے زیادہ لوگ ہیں, اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے ملزم گنے چنے ہیں, وہی 20-25 لوگ ہیں. ہاں وہ ایمان ہے, کوئی کومل اسماعیل ہے, اور اس نے کہیں پر یہ فاطمہ اور کرن کے نام سے سیم یہی والی کہانی ہے کہ ہنی ٹریپ کر کے بلایا ہے اس کو. میں حیران ہوں کہ FIA والے یا عدالتیں جب وہ تفتیش کرتے ہیں تو انہیں یہ سملرٹی نظر نہیں آتی کہ یہ ایک طرح سے جیسے ہم کسی جگہ پہ فارم فل کرتے ہیں تو ایک ہی پرفارما ہوتا ہے, اسی پرفارمے کے تحت یہ FIRs ہیں. سر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کومل اسماعیل کا جو پورے کیس میں ذکر ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے کیس میں, اور پوری دنیا نے جو لائیو ٹرانسمیشن کی کہانی تو بعد میں آئے گی, جو پہلے سے سپتمبر 2024 سے یہ کیس شروع ہوا تھا وہاں پہ,
تو کومل اسماعیل عرف ایمان کا ذکر ہوتا رہا اور پھر وہی کومل اسماعیل ICA فائل کرتی ہے اور وہ خود آ جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جاتی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے پیش ہوتی ہے اور اس کی اسی ICA پہ سسپینشن آ جاتی ہے, سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ. تو آگے آپ سب سمجھدار ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. اچھا اس میں میں ایڈ کرتا جاؤں. ابھی لاسٹ ٹائم پچھلے ہفتے یہاں پر کچہری اسلام آباد کچہری میں ایک کیس تھا, اس کے اوپر جرا ہو رہی تھی, FIA کا ایک جو تفتیشی تھا اس کے اوپر ہو رہی تھی. اور وہ صاحب جتنی بھی تفتیش ہو رہی تھی وہ ایک ڈیوائس پہ ہو رہی تھی اور اسی کے میسیجنگ پر ہو رہی تھی. جو مدعی ملزم تھے راؤ صاحب, ان کی ڈیوائس کا کہیں پر ذکر نہیں تھا اور بار بار اسی بات پیش رہی تھا کہ آپ نے یک طرفہ ایک ہی بندے کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں. اور جس طرح وہ بھائی صاحب نے بتایا کہ جناب ادھر والا میسج تو ڈیلیٹ ہو گیا, ادھر والا رہ گیا, اب اس کی کنورسیشن کیا ہے, اس کا سنک کا آپس میں کیا ہے, کس سوال کا کیا جواب دیا جا رہا ہے. تو اس پہلو پر جو ہے ہمارے ادارے جو ہیں وہ الٹا جو ہے وہ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب یہ ٹیکنیکل رپورٹ ہے, اور ٹیکنیکل رپورٹ کو وہ اپنا فیصلہ بھی قرار دیتے ہیں. یہ فرانسک رپورٹ بھی نہیں ہے, فرانسک رپورٹ بھی نہیں ہے, یہ ٹیکنیکل رپورٹ ہے. سوال تھا اور سردار اعجازی ساکھا تھا جو کہ اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. عموماً فوجداری مقدمات میں کرمنل کیسز میں ہوتا ہے کہ بھائی اگر کسی نے کسی کا مرڈر کیا ہے تو کہاں سے کیے, کیسے کیے, کیوں کیے, گولی کہاں سے خریدی, کلاشن کوپ یا پسٹل کہاں سے. اس کیس میں یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جان انہوں نے شیئرنگ کی ہے, باقی کوئی میسیجز پیچھے نہیں ہے. باقی FIA کے افسران نے یہ نہیں بتایا, یہ نہیں انویسٹیگیٹ کیا کہ اس بندے نے جو میسیج کیے کس کے ساتھ کیا ہے, کیوں کیا ہے. اور وہ جو پیچھے میسیجز ہے انہوں نے کوئی میسیجز کیے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک بندے نے میسیج کیا ہوا ہے تو بس وہ توہین مذہب کے مرتکب ہے. حالانکہ اگر وہ جو فون اگر آپ اس کو فرانسک کراتے ہیں تو جو میسیج اس کے ڈیلیٹ کیے ہوتے ہیں وہ بھی ریکور ہو جاتے ہیں, جی, تاکہ پتہ چل سکتا ہے کہ کس نے میسیج پہلے بھیجا, کس نے بعد میں بھیجا, کیا وقت تھا. کوئی فرانسک نہیں ہے, اس پہ کوئی غور نہیں کرتا. اچھا اس میں میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا, اس میں کہا تھا کہ DG ISI, DG MI اور DG FIA اس پہ ایک رپورٹ بنائیں, اس پہ تحقیقات کریں. FIA, ISI اور MI جو بھی تھا, یہ 3-4 وہ آج تک رپورٹ بنی نہیں, یا بنی ہے تو کہاں ساتھ خانے میں پڑی ہے, سامنے لائیں. یہ 2024 کا فیصلہ ہے, یہ پہلے کا فیصلہ ہے. بہت میں سمجھتا ہوں ہم نے سیر حاصل اس پہ گفتگو کر لی ہے. میں آخر میں آپ لوگوں سے مختصر میسیج چاہتا ہوں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. سب سے پہلے حافظ صاحب. یہی پیغام ہے جو ہم روز اول سے کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان عدلیہ ایسا کمیشن بنائے کہ جس کے اندر وہ دیکھا جائے کہ شیئر کرنے والا کون ہے اور کس کو کیا جا رہا ہے. اب جیسے وہ بھائی نادر صاحب نے کہا کہ اس کو شیئر کیے تو اس کو کس نے بھیجا ہے, آخر اس نے خود تو کریٹ نہیں کیا. دیکھا جائے کہ اس کا کریٹر کون ہے, اس کا موجد کون ہے, کرنے والا کون ہے. اگر ساری فرانسک رپورٹ ہے, فرانسک رپورٹ میں ساری پچھلی باتیں بھی آ جاتی ہیں, تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے, کمیشن بننا چاہیے, کمیشن ہی دیکھے. اب کمیشن کی اب آج کل ایک یوٹیوبر یہ کہتا ہے جی کمیشن جو ہے اس کی یہ ریٹ جو ہے دائر کرنے والے اگر بچے خود ہوں, بچے خود کیوں نہیں ہے, بچے خود جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, بچوں کے وہ رسا تو کمیشن میں کہ وہ پٹیشن بنا رہے ہیں. یہ تو ایسا سوال ہے جو یعنی کہ ایک آدمی جاہل آدمی اور بیوقوف آدمی سوال کرتا ہے کہ بچے خود کیوں آ کے پٹیشن نہیں بن رہے, ان کے والدین آئے ہوئے ہیں. جی میں آپ کو سوال کریں گے؟ نہیں, مختصر آپ اپنا میسیج دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بچے ہیں, جتنے مختلف اس میں مکاتب فکر سے ہیں, تعلیم ان کی کسی کی کام زیادہ ہے, انہوں نے سب بچوں پہ ایک جیسی دفعات 295A BC P کا 11 298A, اور جب ان کی وہ ٹیکنیکل رپورٹ وغیرہ آتی ہیں انہوں نے سب بچوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کریٹر, ایوری باڈی کریٹر, ہر کوئی کریٹر ہے. مطلب آپ کا یوں دیکھ لیں کہ ہر بچے نے ایک جیسا جرم کیا. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ جیل میں جتنے لوگ قید ہیں اس الزام کے علاوہ وہ سب نے ایک ہی جرم کیا ہے. یہاں سب نے ایک جیسا جرم کیا, سب کاپی پیسٹ ہے, نتھنگ ایلس, کاپی پیسٹ. جی آپ مختصر بات کیجیے پلیز. میں یہ چاہتی ہوں کہ حکومت ہمارے بچوں کو باعزت بری کرے. ہمیں 3 دفعہ مارا گیا ہے روڈ پہ, یہ حملہ کیا ہے اس لیے کہ یہ دونوں ختم ہو جائیں اور یہ کیس ہٹ جائے, کوئی بھی نہ ہماری آواز اٹھائے, اور اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو.
आपके पास माइक है, प्लीज़। जी, हमारी हुकूमत से यही है कि तहकीकात करे और हमारे बच्चों को बाइज्जत बरी करे। थैंक यू जी, आपसे। आप ये माइक ले लें हलीमा, उनको दे दें एक माइक। वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ से और वज़ीर दाखिला से सबसे हम अपील करते हैं, मिन्नत करते हैं और इल्तिजा करते हैं, सब माएँ करती हैं जो नहीं आ सकी, और हम भी यही करते हैं बार बार कि हमारे बच्चों को रिहाई दी जाए। बहुत बहुत मेहरबानी और शुक्रिया। थैंक यू जी। हलीमा, मैं ये कहना चाहूँगी कि रियासत माँ होती है, अगर माँ सो जाएगी तो इन बच्चों को दरिंदे नोच खाएंगे। मेरी अपील यही है मरीम नवाज साहिबा से कि बच्चे सबके साझे होते हैं, वो हमारी माँओं के दुख को समझे। हम अब जिंदा नहीं हैं, जिंदा लाशें हैं, हम जीना नहीं चाहती। इसके साथ ही हम आज के इस प्रोग्राम में जो है वो आपसे इजाज़त चाहेंगे, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग ट्रैवल करके लाहौर से आए, आप भी गुजरात से आए, और बाकी सब लोग यहाँ, और हमारे पास और भी यहाँ पर ऐसे लवाकिन बैठे हैं जिनके बच्चे इसी तरह जेलों में हैं और गैर साबितशुदा इल्ज़ामात के तहत एक अजियत का शिकार हैं। हमारी हमदर्दी आप सबके साथ है, और जब तक हम में हिम्मत है हम आपके बच्चों की आवाज़ उठाते रहेंगे, और हम ये साथ दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह इन बच्चों को, इनके वालिदैन को इंसाफ दे। और हमारा यकीन है कि इंसाफ जो है वो एक बुनियादी हक है, हमारे कानून के तहत भी और हमारी शरीयत के मुताबिक भी हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसको इंसाफ दिया जाए। और हम अल्लाह से मिलकर यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह अपने हबीब के सदके इन लोगों को इंसाफ दे। बहुत शुक्रिया जी आपके आने का, और आप सबका बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन।